ٹھیک نا. سب سے پہلے ہم بات کریں ایناٹامی کی. ایناٹامی آف دی گراف. اب عام طور پہ ایناٹامی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ایناٹامی بولا جاتا ہے جب ہم کسی بھی جاندار کی اندرونی ساخت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جب اس کے اندر کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں, اندرونی جسم کی ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, تب اس کو بولا جاتا ہے ایناٹامی. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں نظام ہاضمہ کی, یا ہمارے انہضام کی بات کر رہے ہیں, یا ہم سانس لینے چھوڑنے کے عمل کی بات کر رہے ہیں, تو وہ کون کرتا ہے؟ لنگس کرتے ہیں, اندر والے. خون کے دوران کی بات کرتے ہیں تو خون کا دوران کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے. دل کہاں ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے. تو وہ سارے اسٹڈی جو ہم ہمارے جسم کے اندرونی اعضاء سے ریلیٹڈ کرتے ہیں یا اندرونی اعضاء کے لیے کرتے ہیں, تب ہم اس کو کہتے ہیں ایناٹامی. اس لیے کل بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم جب فراق کی ایناٹامی کی بات کریں گے تو فراق کی ایناٹامی میں ہم کون کون سے ٹاپک کی بات کرنے والے. تو کل بھی میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے عمل انحصار کی, دوسرا ہم بات کریں گے عمل تنفس کی, تیسرا ہم بات کریں گے نظام دوران خون کی, چوتھا ہم بات کریں گے عمل تولید کی, پانچواں ہم بات کریں گے نظام اخراج کی, چھٹا ہم بات کریں گے عصبی نظام کی. تو یہ جو جاندار ہوتے ہیں, جانداروں کے اندر یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ نظام ہوتے ہیں. ان نظاموں کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو ہم کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ جاندار کے جسم کے اندر کس طرح سے فنکشن ہوتے ہیں, کس طرح سے کام ہوتے ہیں نا. اب سب سے پہلے میں بات کر رہا ہوں نظام انہضام کی ساخت کی. نظام انہضام کی ساخت کا مطلب ہم کس کی بات کریں؟ اگر اس کی بات کریں تو ہم انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈائجسٹیو سسٹم. ہم انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کو انگلش میں ڈائجسٹیو سسٹم. تو ڈائجسٹیو سسٹم جو ہوتا ہے اس میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غذا کی نالی. کیا ہوتا ہے؟ غذائی نالی. اور دوسرا ہوتا ہے ہاضمی غدود یا ہاضمے کی غدود. تو انگلش میں جو غذائی نلی ہوتی ہے, غذائی کی نالی ہوتی ہے, اس کو بولا جاتا ہے ایلیمنٹری کینال. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ ایلیمنٹری کینال. اور جو ہاضمے کے غدود ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈائجسٹیو گلینڈز. اب ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز یاد رکھنا ہے کہ جو مینڈک ہوتی ہے, مینڈک کے اندر جو غذا کی نالی ہوتی ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ تو اس کی شروعات ہوتی ہے ماؤتھ سے, یعنی منہ سے. اور وہ ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ وہ ختم ہوتی ہے کولیکا. عام طور پہ دوسرے جانداروں کی اگر ہم بات کریں گے تو ان کے اندر جو غذا کی نلی ہوتی ہے وہ کہاں ختم ہوتی ہے؟ وہ ختم ہوتی ہے اینس. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ اینس. لیکن یہاں پر اس کو بولا جاتا ہے کولیکا. تو یاد رکھنا, اگر آپ تھوڑا سا اگر ڈائگرام کو دیکھیں گے تو اس میں فراگ ہے اور فراگ کے اوپر یہ پورا ایرو کے فارم میں یہاں پر بتایا ہوا ہے. تو سب سے پہلا جو غذا کی نلی ہوتی ہے اس کے اندر جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماؤتھ. دوسرا ہوتا ہے بکل کیویٹی. تیسرا ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے فیرنگس یعنی حلق. چوتھا حصہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسوفیگس یا اس کو آگے ہوتا ہے خوراک کی نلی. اس کے بعد ہوتا ہے اسٹمک یا ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ میدا. پانچواں حصہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹمک اور میدا. چھٹا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آنت یا اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ انٹسٹائن. ساتواں حصہ ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے ریکٹم. اور آٹھواں جو حصہ ہوتا ہے جہاں پر یہ جو غذا کی نلی ہے ختم ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے کولیکٹا. تھوڑا فاسٹ لکھو, جلدی جلدی لکھو, کیونکہ ہم کو یہ ٹاپک ختم کرنا ہے. تو ایک ایک دن میں ہم کو سارا چیپٹر ختم کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 70% مائنڈ میرے میں جو بول رہا ہوں اس پہ لگانا ہے اور 30% آپ نے لکھتے چلے جانا ہے. یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں اس میں جتنی چیزیں آپ ابھی لکھ لے سکتے ہیں لکھ لیجیے. اس کے بعد پھر سے اس کو ایک بار اور ریویژن کرنا رہے گا, تب اس میں جو پوائنٹ بچ گئے وہ لکھنا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب تک آپ لکھیں گے نہیں تب تک آپ کے کنسپٹ کلیئر ہوگا نہیں. آن لائن کا اسٹڈی کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. آن لائن کی اسٹڈی کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم اگر نوٹس ساتھ میں نہیں بناتے ہیں آن لائن لیکچر ریکارڈنگ تو وہ ہمارے مائنڈ میں فٹ ہوتا نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بھی آپ میں سے اگر سستی کاہلی بتائے گا خاص کر کے نوٹس لکھنے کے معاملے میں اس کو نقصان ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے میں جو باتیں بول رہا ہوں اس کو لکھتے چلے جانا ہے. جتنی بات آپ کو سمجھ گئی اتنی لکھ لیجیے. اس کے بعد ویڈیو اویلیبل ہے, وہ ریکارڈنگ کو دوبارہ دیکھیے. 1 گھنٹہ اور بیٹھنا پڑے گا اسٹڈی کے لیے, بٹ اتنا رہے گا کہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہو جائے گا, آپ کا کنسپٹ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو
डाइजेस्टिव निज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम है, अमल निज़ाम है। उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है ग़िज़ा की नाली और दूसरा है हाज़िम गुदुद। ग़िज़ा की नाली के अंदर कितने पार्ट होते हैं? हमने यहाँ कहा कि टोटल 8 पार्ट है। कौन कौन सा है? तो पहला है मुंह, दूसरा है बकल कैविटी, तीसरा है हलक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंक्स, चौथा है इसोफेगस जिसको बोलते हैं खुराक की नली, छठा आता है मैदा जिसको बोलते हैं स्टमक, सातवां होता है आंत जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइन, उसके बाद होता है रेक्टम और उसके बाद होता है कोलेक्टा। ठीक है। अब मेंढक के मामले में एक बात याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि मेंढक जो होती है वो होती है कार्निवोरस। कार्निवोरस किसको कहते हैं? आपको पता है कि जितने भी जानदार हैं उन जानदार को तीन उनके खाने की हैबिट की बुनियाद पर, खाने की आदतों की बुनियाद पर उनको कुछ ग्रुप में तकसीम किया है। कौन कौन से ग्रुप में उनको तकसीम किया? एक होते हैं जिनको हम कहते हैं सब्जी खोर, दूसरे होते हैं जिनको कहते हैं गोश्त खोर, और तीसरे होते हैं जो सब्जी और गोश्त दोनों भी खाते हैं। तो फ्रॉग की अगर बात करते हैं, मेंढक की अगर बात करते हैं, तो मेंढक के मामले में ये बोला जाता है कि ये कार्निवोरस है, यानी गोश्तखोर है। गोश्तखोर का मतलब क्या है कि आमतौर पे ये कीड़े मकोड़ों को खाता है। आमतौर पे ये किसको खाता है? आमतौर पे कीड़े मकोड़ों को खाता है। बढ़ रहा है स्क्रीन पे तो प्रॉपरली दिख नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करिए। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये कीड़ों को खाते हैं। कीड़ों को खाने की वजह से इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स होने की वजह से सबसे अहम बात याद रखना है, कार्निवोर्स होने की वजह से इनकी जो आंत होती है उस आंत की जो लंबाई होती है वो बहुत छोटी होती है। कार्निवोर होने की वजह से इनकी जो आंत है उसकी जो लंबाई होती है वो छोटी होती है। तो इम्तिहान में इसको क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए अगर आप देखेंगे तो मैंने वहां पर लिखा हुआ है नीट फोकस बैच। क्या ये हमको याद रखना है कि जो फ्रॉग होता है वो गोश्तखोर होता है, गोश्तखोर होने की वजह से उसकी आंत की जो लंबाई है वो क्या होती है? छोटी होती है। याद रहेगा। महफूज भाई तो समझ रहे हैं। चैट बॉक्स में बताते रहिए, अगर वीडियो ऑन रहेगा तो मेरे को सिर्फ थंब दिखाना पड़ेगा। अर्शद को समझ रहा है? ना बढ़ना है आगे अगर ना। अब इनके जो हाजमा है उस हाजमे में तीन बातें याद रखना है। पहला कि हमने कहा कि इनका माउथ कैविटी होती है, मुंह होता है। तो मुंह में क्या होती है? मुंह में होती है जबान। अगर आप देखेंगे तो डायग्राम के अंदर ये बताया हुआ है कि जो जबान इनकी है, ये जबान क्या कर रही है? जबान सीधा कीड़े को पकड़ रही है। इसका मतलब ये है कि इनके पास जो खाने का तरीका है, वो खाने का तरीका क्या है? वो खाने का तरीका ये होता है कि वो खुराक को क्या करती है? वो खुराक को पकड़ती है। खुराक को क्या करती है? अपनी जबान से पकड़ती है। जैसा हम क्या करते हैं, जब भी हमको खाना खाना होता है तो हम हाथ से रोटी तोड़ेंगे या हाथ से चावल लेंगे, जो भी करेंगे हाथ से लेके मुंह तक लेकर जाएंगे। लेकिन इनके पास क्या होता है? इनके पास खुराक को डायरेक्टली वो पकड़ते हैं। इसका रीजन क्या है? तो इनके पास जो होती है जबान होती है, कैसी होती है? इनके पास जबान जो होती है वो चिपकने वाली दो शाख जबान होती है। इनकी जो जबान होती है वो स्टिकी होती है और बाइफीड होती है। बाइफीड का मतलब उसके अंदर दो सिरे होते हैं। जबान कैसी होती है? स्टिकी होती है, बाइफीड होती है। स्टिकी और बाइफीड का मतलब क्या है? चिपचिपी होती है और दो शाखों वाली होती है, जिसके नतीजे में वो क्या करेगा? वो डायरेक्टली किसी भी इंसेक्ट को इस तरह से पकड़ लेगा और फिर अपने मुंह में लेकर चला जाएगा। तो याद रखना है कि वो क्या करता है? शिकार को तेजी से पकड़ने की क्या रखती है? सलाहियत रखती है। अगर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दूं कि आपने एक पीछे क्रिश मूवी आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि डीएनए में चेंज करे थे और एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिससे क्या होती है? जबान बहुत दूर तक जाती है और वो जबान के जरिए क्या करता है? चीजों को पकड़ता है, जबान के जरिए चीजें खाता है। तो उन्होंने क्या किया था? इसी का डीएनए निकालकर इंसान के जिस्म में डाला था। तो इस तरह से उस मूवी में बताया गया था कि जबान के जरिए क्या करता है? वो अपनी खुराक को हासिल करता है। तो मेंढक के मामले में याद रखना, उसकी जो जबान होती है वो स्टिकी होती है और बायोफील्ड होती है, दो दो सिरे वाली होती है। तीसरा, इनका जो मैदा होता है, मैदे में हाजमे का अमल होता है। मैदे के अंदर जो हाजमे का अमल होता है वो कैसे होता है?
تو آپ اگر اس ڈائیگرام کو دیکھ رہے ہوں گے تو ڈائیگرام میں یہ ہے کہ اب اس کے معدے کے اندر کون چلا گیا ان سے. اس کا مطلب یہ کہ جس طرح سے ہم کسی بھی چیز کو پہلے منہ کے اندر چباتے ہیں اور چبانے کے بعد معدے میں ڈالتے ہیں, ان کے پاس ڈائریکٹلی وہ جو بھی انسیکٹ رہے گا, کھانا رہے گا, خوراک رہے گا, وہ سیدھا اسٹمک میں چلے جائے گا. پھر اسٹمک میں کیا ہوگا, تو اسٹمک کے اندر وہاں پر ہوگا گیسٹرک جوس کا سیکریشن, وہاں پر ہوگا گیسٹرک جوس کا افراز. دوسرا وہاں پر ہوگا ہائیڈروکلورک ایسڈ کا افراز. اس طرح سے اسٹمک کے اندر وہ دو کیمیکل ایڈ کرتا ہے. ایک کیمیکل ایڈ کرتا ہے جس کا نام ہے گیسٹرک جوس, دوسرا کیمیکل ہے جس کا نام ہے HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ. اور گیسٹرک جوس اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, وہاں پر ہوتا ہے ڈائجیشن کا عمل, انہضام کا عمل, بریک ڈاؤن کا عمل. اور اس طرح سے جب اسٹمک کے اندر وہ جو بھی خوراک ہے یا جو بھی کھانا ہے اس کا جب بریک ڈاؤن ہوتا ہے, توڑنے کا عمل ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے میں وہاں پر چھوٹے 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 فریگمنٹس بن جاتے ہیں, چھوٹے 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 ٹکڑے بن جاتے ہیں. اب وہ جو ہضم شدہ غذا ہے جس کو ہم بولیں گے کہ پارشل ڈائجسٹڈ, پارشل ڈائجسٹڈ کا مطلب کیا ہے, پوری طرح سے ابھی وہ ہضم نہیں ہوا, صرف اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے. اب اس طرح کی جو غذا ہوتی ہے اس غذا کو وہاں پر بولا جاتا ہے کائل. کیا بولا جاتا ہے اس غذا کو, کائل. تو یاد رکھنا ہے یہ بہت اہم ہے, امتحان میں یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ اسٹمک میں کون کون سے ایسڈ یا کون کون سے سیکریشن ہوتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے گیسٹرک جوس, دوسرا ہوتا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ. ہائیڈروکلورک ایسڈ کیا کرے گا, ہائیڈروکلورک ایسڈ کا جو پی ایچ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, وہ ایسیڈک ہوتا ہے. تو جو بھی ہارڈ فوڈ مٹیریل رہے گا وہ ہارڈ مٹیریل رہے گا اس فوڈ مٹیریل کو وہ بنا دے گا سافٹ, تاکہ آسانی سے اس کے جسم میں اس کے کیا ہو جائے, ٹکڑے ہو جائے. جیسا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم جیسے منہ کے اندر روٹی رکھتے ہیں تو وہاں پر کیا نکلتا ہے, تھوک نکلتا ہے, سلائیوا نکلتا ہے, اور وہ روٹی کو دھیرے دھیرے کیا کر دیتا ہے, نرم کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو چبانا ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے, آسان. تو ایسے ہی مجھے جسم کے اندر ہوتا ہے, اور آخر میں جب ڈائجیشن کا عمل مکمل یعنی ڈائجیشن کا عمل کمپلیٹ ہوتا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے فریگمنٹ مل جاتے ہیں ان سب کو ملا کر کیا بولا جاتا ہے, کائل. امتحان میں یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ جو پارشلی ڈائجسٹڈ فوڈ ہے یا جو نامکمل ہضم شدہ غذا ہے اسٹمک کے اندر, معدے کے اندر, اس کو کیا نام دیا ہے یا اس کو کیا بولا جاتا ہے, اس کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, ان کی جو زبان ہوتی ہے یہ آگے کی طرف یعنی اینٹیریئرلی جڑی ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری جو زبان ہے, ہماری زبان پوسٹیریئرلی یعنی پیچھے کی طرف جڑی ہوئی, اس لیے جب ہم اس طرح سے زبان کرتے ہیں تو زبان باہر آتی ہے. ان کی جو زبان ہوتی ہے اینٹیریئرلی یعنی سامنے کی طرف, یہاں پر جڑی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ زبان کو اس طرح سے باہر پھینکتا ہے, اور زبان کو جب وہ اس طرح سے باہر پھینکے گا تو کیا ہوگا, زبان جائے گی اور کسی بھی چیز کو آسانی سے کیا کرے گی, پکڑ لے گی. یہ بہت اہم ہے, اس کو یاد رکھنا کہ ان کی جو زبان ہوتی ہے وہ کس طرف جڑی ہوتی ہے, اینٹیریئرلی یعنی سامنے کی طرف, آگے کی طرف. ٹھیک ہے. تو انسان کی اگر بات کرتے ہیں تو انسان کے برعکس مینڈک کی جو زبان ہے وہ منہ کے اگلے حصے میں یعنی پیچھے کی طرف وہ کیا ہوتی ہے, چپکی ہوتی ہے, تاکہ وہ اسے دور تک پھینک سکے. تو یاد رکھنا کہ انسان کی جو زبان ہے پیچھے کی طرف چپکی ہوئی ہے اور مینڈک کی جو زبان ہے وہ آگے کی طرف چپکی ہوئی ہے. ٹھیک, کلیئر. ارشد بیٹے آپ دکھائی نہیں دے رہے کیمرے میں, محفوظ بھائی آپ بھی نہیں دکھائی دے رہے, تو میں کیسے بھروسہ کروں کہ آپ لوگ لیکچر میں ہیں. نا اب ایک اور اہم حصہ ہوتا ہے ان کے عمل انہضام کا, جیسا ہم نے کہا کہ انٹسٹائن. اب انٹسٹائن میں ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے, اس کو بولا جاتا ہے ڈیوڈینم. کیا بولا جاتا ہے اس کو, ڈیوڈینم. ٹھیک ہے. ڈیوڈینم بیسیکلی کیا ہوتا ہے, تو جو انٹسٹائن ہوتی ہے اس انٹسٹائن کا یہ جو پورا حصہ ہے اس کو بولتے ہیں ڈیوڈینم. یہ جو ڈیوڈینم ہے آپ بول سکتے ہیں اس کو کہ یہ سی شیپ کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈیوڈینم ہے اس میں کیا ہو رہا ہے, اگر آپ اس ڈائیگرام کو اگر دیکھ رہے ہیں, اس امیج کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک طرف یہاں پر ہے جگر اور دوسری طرف ہے یہاں پر لبلبا. لبلبا کا مطلب کیا ہے, لبلبا کا مطلب ہوتا ہے پینکریاس, یعنی ہمارا جو غدود ہے پینکریاس, اور جگر کا مطلب ہے ہمارا لیور. ٹھیک ہے.
तो ये दो चीजें कहाँ पर जाके खुल रही है, तो आप देखेंगे कि जिगर और ये लव ये दोनों भी जाके एक आंत के हिस्से में खुल रही है, और आंत के जिस हिस्से में ये खुल रही है उसको बोला जाता है डिओडिनम। अब होता क्या कि जो भी डाइजेस्टेड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो स्टमक से होते मैदे से होते हुए कहाँ पर आएगा, इंटेस्टाइन। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, जो नामुकम्मल हजम शुदा गिजा है, उसको मुकम्मल हजम करना है, यानी पूरी तरह से उसका ब्रेक डाउन कर देना है, ताकि उसमें से जितने भी अहम ग़िज़ाई अजनास है उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो इसके लिए क्या होता है, अब यहाँ पर डिओडिनम के अंदर दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है कि जो जिगर है वो क्या करता है, जिगर वहां पर एक सिक्रीशन निकालता है, एक इफराज करता है किसका, कीमेई मादे का, जिसका नाम क्या है, बाइल जूस। और लीवर क्या करता है, ये बाइल जूस को बनाकर ये दे देता है गॉल ब्लैडर को, इसको दे देता है गॉल ब्लैडर को। आमतौर पर हम गॉल ब्लैडर किसको कहते हैं, हम कहते हैं पित्ते को। तो इस तरह से होता क्या कि जो जिगर है वो बनाता है बाइल जूस। जिगर क्या बनाता है, जिगर बनाता है बाइल जूस, और ये बाइल जूस जाके कहाँ जमा हो जाता है, हमारे पित्ते में। ये पित्ता क्या करता है, उस बाइल जूस को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में खारिज करता है। जैसे वो छोटी आंत में छोड़ेगा, तो छोटी आंत में जैसी वो बाइल जूस आएगा, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो बाइल जूस अटैक करेगा चर्बी के ऊपर। बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस अटैक करेगा चर्बी के ऊपर, और चर्बी को वो क्या करना शुरू करेगा, पिघलाना शुरू करेगा। जब चर्बी को पिघलाया जाता है ताकि वो आसानी से हमारे जिस्म में क्या हो जाए, जज्ब हो जाए। हमको बताया कि जितना भी तेल या चर्बी है ये कभी भी हजम नहीं होती, ये हमेशा एक जगह आके क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। इसलिए हमारे जिस्म के अंदर बाइल जूस ये स्पेशल ऐसा सिक्रीशन है, ऐसा फ्लूइड है, ऐसा लिक्विड है जो चर्बी को पिघलाने का काम करता है। और जब बाइल चर्बी को पिघलाता है तब उस अमल को बोला जाता है इम्यूसिफिकेशन। क्या बोला जाता है उस अमल को, इम्यूसिफिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इम्तिहान में पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय इम्यूसिफिकेशन। इम्तिहान में पूछा जाता है बाइल जूस का काम क्या है, इम्तिहान में पूछा जाता है बाइल जूस होता क्या है। तो अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है कि छोटी आंत के अंदर जिगर से पित्ते में, और पित्ते से छोटी आंत में एक केमिकल रिलीज होता है, उसका नाम है बाइल जूस। और वो बाइल जूस किसका ब्रेक डाउन करता है, वो बाइल जूस ब्रेक डाउन करता है, किसको तोड़ता है, वो सिर्फ चर्बी को तोड़ता है। ठीक है। दूसरा, लवलवा। लवलवा क्या खारिज करता है, लवलवा खारिज करता है पैनक्रियाटिक जूस, या उसको बोला जाता है लवलवे का रस। अभी जो पैनक्रियाटिक जूस है या जो लवलवे का रस है, उसमें क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं एंजाइम्स, उसके अंदर होते हैं खामरे। ये एंजाइम और खामरे क्या करते हैं, ये एंजाइम और खामरे खास करके प्रोटीन और खास करके कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, हजम करते हैं। हमको पता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में क्या क्या होता है, हमारे खाने में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, हमारे खाने में होते हैं प्रोटीन, हमारे खाने में होती है चर्बी। तो इन सब को क्या करना होता है, तोड़ना होता है, ताकि हमारे जिस्म के अंदर वो आगे चल के क्या होता है, हजम होता है, यानी हमारे खून में शामिल हो जाए। और जब वो खून में शामिल होगा तो खून हमारे जिस्म के अलग अलग आज़ा तक क्या करेगा, उसको सप्लाई कर देगा, पहुंचा देगा। तो ये बहुत अहम है, इसको याद रखना है। जैसा हम ये कहते हैं कि अगर मान लो कि कोई मजदूर है, उसको दीवार तोड़ना है, तो जब वो दीवार तोड़ेगा तो वो क्या करेगा, वो दीवार के सीमेंट को अलग करेगा, रेती को अलग करेगा, और जो ईंटें हैं उनको अलग करेगा, और वही रेती सीमेंट ईंट और ईंट को क्या करेगा, दोबारा इस्तेमाल करके कोई नई दीवार बनाएगा। तो हमारे जिस्म में भी ऐसा ही होता है। जब हम कोई खाना खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं या रोटी खाते हैं, तो उससे होता क्या है, वो गोश्त और रोटी के अंदर मौजूद जो चर्बी है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, पहले उसको तोड़ा जाता है और फिर उसी को हमारे खून में शामिल किया जाता है। फिर हमारा खून क्या करेगा, उसको अलग अलग जिस्म के अलग अलग जगह पर देकर जाएगा, और वहाँ पर जहाँ जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहाँ पर उसका क्या होगा, इस्तेमाल होगा। इस तरह से हमारे जिस्म में ये पूरा काम होता है। अब एक और जो बात याद रखना है कि बाइल जूस और ये जो बाइल जूस और जो हमारा लवलवे का जूस है, जिसको हम पैनक्रियाटिक जूस बोल रहे हैं, इन दोनों को आंत में लाने वाली एक नली होती है जो कि मुश्तरका होती है, कॉमन होती है।
اسی لیے اس کو بولا جاتا ہے مشترکہ نلی یا اس کو بولا جاتا ہے کامن بائل ڈکٹ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ مشترکہ نلی یا کامن بائل ڈکٹ. امتحان میں یہ بات پوچھا جاتا ہے کہ کامن بائل ڈکٹ کا مطلب کیا ہے، مشترکہ نلی کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کامن بائل ڈکٹ یا مشترکہ نلی کا مطلب ہوتا ہے ایسی نلی جو پینکریاٹک جوس کو پینکریا سے یعنی لبلبے کے جوس کو لبلبے سے اور بائل جوس کو جگر سے ایک ساتھ لانے کا کام کرتی ہے اور کہاں چھوڑتی ہے، ڈیوڈینم میں چھوڑتی ہے. اس لیے اس کو بولا گیا مشترکہ نلی یا کامن بائل ڈکٹ. ڈن. نہ اب اس کے بعد انتظام کی جو کھانا ہضم ہو گیا اس کا کیا کرنا پڑے گا، ایبزارپشن کرنا پڑے گا، اس کو خون میں جذب کرنا پڑے گا. تو اب کیا ہوتا ہے، جو انہضام کا عمل ہے وہ کہاں پر ہوگا، وہ ہوگا انٹسٹائن. پہلی بات یہ کہ یہ ڈائیگرام کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. یہ اصل میں ہماری جو فراگ ہے اس کی انٹسٹائن ہے. جیسے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ ڈائیگرام میں کیا ہوتا ہے، یہ ڈائیگرام میں پورا انٹسٹائن ہے. اب اس انٹسٹائن میں یہ جو انٹسٹائن ہے یہ اسمال انٹسٹائن ہے، چھوٹی انٹسٹائن ہے. اب اسمال انٹسٹائن کے اندر کیا ہوتا ہے، اسمال انٹسٹائن کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں. ایک کو بولا جاتا ہے ویلائی، دوسرے کو بولا جاتا ہے مائکرو ویلائی. ویلائی اور مائکرو ویلائی کیا کرتے ہیں، ویلائی اور مائکرو ویلائی ہمارا جو انٹسٹائن ہے اس کا جو سرفیس ایریا ہے، جو پلین ایریا ہے، اس کو کیا کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوگا، نتیجے میں یہاں پر ہر جگہ سے فوڈ مٹیریل کا کیا ہوگا، انتظام ہوگا. یعنی خون کے اندر زیادہ سے زیادہ جو نیوٹرینٹ ہے اس کو کیا کیا جائے گا، شامل کیا جائے گا. تو اب بھلے انتظام زیادہ سے زیادہ ہو، اس لیے ہماری جو انٹسٹائن ہوتی ہے اس کے اندر کیا موجود ہوتی ہے، اس کے اندر ہوتی ہے فولڈنگ. یعنی ہماری جو انٹسٹائن ہے وہ ٹیڑھی میڑھی کیوں ہے، وہ ٹیڑھی میڑھی اس لیے تاکہ اس کا جو سرفیس ایریا ہے وہ زیادہ ہو جائے. سرفیس ایریا کا مطلب کیا ہے، اس کی جو سطح کا رقبہ ہے وہ زیادہ ہو جائے. سطح کا رقبہ اگر زیادہ ہو جائے تو کام کرنا آسان ہوگا. تو اس لیے یاد رکھنا ہے. تو دو طرح سے ویلائی اور مائکرو ویلائی، یہ دو طرح کی فولڈنگز ہوتی ہیں ہماری انٹسٹائن میں. اب ہضم شدہ جو خوراک ہے اس کا آنتوں کے ذریعے خون میں کیا کیا جاتا ہے، جذب کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ویلائی اور مائکرو ویلائی کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سطح کا رقبہ کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر خون کا جو انتظام ہوگا وہ کیا ہوگا، جو غذا کا انتظام ہے وہ کیا ہوگا، زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. میں تھوڑی سی چائے پیتا ہوں یار، بہت بھوک لگی ہوئی تھی. اور ارشان بھائی، ابو بکر بھائی، اگر آپ لوگوں نے بھی چائے وغیرہ نہیں پی ہوں گے تو ساتھ میں پی لو. ارے ابو بکر بھائی کچھ تو رپلائی دو یار. ہاں نا. رات میں 3:30 سے بیٹھ کر آپ لوگوں کی تیاری کر رہا ہوں. تو صبح میں فجر نماز پڑھ کے سو گیا تھا. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کھانا وغیرہ کچھ ہوا نہیں ہے. سمجھا ابو بکر بھائی؟ محفوظ مولانا کہاں غائب ہو گئے، اب کیمرے میں دکھتے نہیں ہیں. نہ اب اس کے بعد کیا ہوگا، جو بچا کچا مٹیریل ہے یعنی جس کا انتظام نہیں ہوا یا جو جذب نہیں ہوا، یعنی ایسی غذا جو کمپلیٹلی ہضم نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمارا جسم کیا کرے گا، باہر خارج کرے گا. ویسے ہی فراک کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہضم ہو گئی وہ خون میں شامل ہو جائیں گی، اور جو چیزیں ہضم نہیں ہوئی وہ جسم سے کیا کر دی جائیں گی، باہر خارج کر دی جائیں گی. تو یہاں پر ایک عمل ہوتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے انجیشن. دو باتیں یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے انجیشن یعنی غذا کو منہ کے ذریعے اندر لینا، اور ایک چیز ہوتی ہے ایجیشن یعنی ہمارے جسم سے غذا کو باہر خارج کرنا.
تو جو بھی غیر ہضم شدہ خوراک ہوتی ہے، جو بھی غیر ہضم شدہ خوراک ہوتی ہے وہ ریکٹم میں کیا کرتی جاتی ہے، جمع کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے، جسم سے اس کو باہر کیا جاتا ہے۔ جسم سے باہر کرنے کے لیے اس کے لیے ہوتا ہے کولیکا، کیا ہوتی ہے، کولیکا۔ تو جسم سے باہر خارج کرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے، اس راستے کو بولا جاتا ہے کولیکا۔ تو بنیادی طور پر یاد رکھنا ہے کہ ہماری جو انٹسٹائن ہوتی ہے، جو آنت ہوتی ہے، اس آنت کے اندر ایک جو حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسمال انٹسٹائن کا، ایک ہوتا ہے لارج انٹسٹائن کا، اور لارج انٹسٹائن کا ایک جو حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ریکٹم۔ کیا بولتے ہیں، ریکٹم۔ جہاں پر کیا ہوتی ہے، جو انڈائجسٹڈ مٹیریل ہوتا ہے، جو غیر ہضم شدہ مٹیریل ہوتا ہے، اس کو ریکٹم میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آخر میں کولیکا کی مدد سے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، جسم سے باہر خارج کر دیا جاتا ہے۔ اب کولیکا کیا ہے، تو کولیکا کے معاملے میں یہ بات لکھ کر رکھیے اور یاد رکھیے کہ کولیکا بھی ایک طرح کا مشترکہ راستہ ہے۔ کولیکا بھی ایک طرح کا کیا ہے، مشترکہ راستہ ہے، کامن راستہ ہے۔ کس کے لیے ہے، یہ ہاضمے کے، اخراج کے اور تولیدی نظام کے، ان تینوں کے لیے ایک ہی راستہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے جسم میں جس طرح سے تولید کے لیے اور نظام کے لیے اور ایکسکریشن کے لیے، یعنی عمل استخراج کے لیے تین الگ الگ راستے ہیں، لیکن فراگ کے باڈی میں ان تینوں بھی عمل کے لیے ایک کامن راستہ ہے، اور اس کامن راستے کو کیا بولا جاتا ہے، کولیکا۔ کیا بولا جاتا ہے اس کو، کولیکا۔ ارشاد بھائی سمجھ رہے ہیں؟ کمنٹ باکس میں انگوٹھا کچھ دکھاؤ، یس ہاں نہ، کیونکہ تم کیمرہ بند کر کے بیٹھے۔ چل نہ، اب یہاں تک ہم نے بات کری مینڈک کا عمل انہضام، ڈائجسٹو سسٹم کی۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں مینڈک میں عمل تنفس، ریسپیریشن۔ نا مینڈک کی اگر ریسپیریشن کی بات کرتے ہیں تو مینڈک میں تین طرح کا ریسپیریشن ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جلد کے ذریعے ہونے والا تنفس، ایک ہوتا ہے بکو فیرنجیل تنفس، ایک ہوتا ہے پلمونری تنفس۔ تین طرح سے مینڈک کے باڈی میں عمل تنفس ہوتا ہے۔ عمل تنفس کیا ہوتا ہے تو ہم کو پتا ہے، سانس لینے اور سانس چھوڑنے کا عمل۔ سانس لینے اور سانس چھوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جب سانس لیتے ہیں تو اصل میں ہم ہمارے جسم میں آکسیجن سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر بننے والی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ گیس ہے، اس کو خارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فراگ بھی کیا کرتا ہے، تین طریقے سے یہ عمل انجام دیتا ہے۔ اس میں وہ جلد کا بھی استعمال کرتا ہے، بکو فیرنجیل مطلب اپنے منہ کا بھی استعمال کرتا ہے، اور پلمونری یعنی اپنے لنگس یعنی پھیپھڑوں کا بھی استعمال کرتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ جو تینوں بھی اعضاء ہے، یا تینوں بھی الگ الگ سسٹم ہے، وہ کیسے یوز کرتا ہے، تو پانی میں جب بھی وہ پانی میں رہے گا، جلد کے ذریعے آکسیجن کو کیا کرے گا، وہ ڈیفیوژن کرے گا، یعنی جسم سے خارج جسم کے اندر رہے گا۔ تو جلد کا جو تنفس ہے، یا جو انگلش میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کیوٹینیس، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیوٹینیس۔ تو عام طور پہ یہ بولا جاتا ہے کہ جب بھی فراگ نا، ایک اور کنسیپٹ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے کہا تھا کہ فراگ جو ہے وہ سمر سلیپ اور ونٹر سلیپ، یاد آ رہا ہے کیا، ہائبرنیشن اور ایسٹیویشن، یہ دو طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اور محفوظ بھائی میرا آپ کا مائک میں سنائی نہیں دے رہا ہے، اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ بولنا ہے تو میسج ٹائپ کریے، ٹھیک ہے؟ بھائی آپ کا مائک بند کرو، محفوظ بھائی مائک بند کرو آپ کا۔ محفوظ او محفوظ تو اگر یہ کچھ بول رہے ہیں کیا، آپ کا مائک بند کرو محفوظ بھائی۔ محفوظ کچھ بول رہے ہیں کیا، کیونکہ میرا ہیڈ فون لگا ہوا نہیں ہے، اگر وہ کچھ بول رہے ہوں گے تو ان کو بولیے کہ میسج ٹائپ کرو۔
ठीक है। तो अमल तनफुस जो होता है वो 3 तरीके से होता है, एक होता है जिल्द के जरिए, एक होता है बकोफेरेंजियल यानी मुंह के जरिए, और एक होता है फेफड़ों के जरिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन, क्योंकि हमने कहा कि जो फ्रॉग होता है, जो मेंढक है, वो जलथली है, यानी वो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। तो सवाल ये आता है कि पानी में वो कौन से अज़ा का इस्तेमाल करेंगे और ज़मीन पर कौन से अज़ा का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखना है कि जब भी वो पानी में होंगे तो वो जिल्द का इस्तेमाल करेंगे, और जब भी वो ज़मीन पर होंगे, खुश्की में होंगे, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, फेफड़ों का, और साथ ही साथ बक्कल फेरिंजन यानी मुंह की झिल्ली का। बक्कल फेरिंजन किसको कहते हैं, और कहते हैं इसको, जो हमारा जो मुंह है ना, उसको बोलते हैं बक्कल, तो उसको बोला जाता है बक्कल कैविटी। तो अगर ये अमल तनफ्फुस में मुंह का भी इस्तेमाल करता है और लंग्स का भी इस्तेमाल करता है, तब हम ये कहते हैं कि ये दोनों जो आज़ा है, इसका इस्तेमाल वो कहाँ करेगा, वो करेगा ज़मीन पर, खुश्की पर। जिल्द का इस्तेमाल कहाँ करेगा, पानी में। और इसी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये जलथलीय है, पानी में रहते, जमीन पे रहते। फिर दूसरा ये पॉलीकिलोथर्मिक है। पॉलीकिलोथर्मिक का मतलब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इनका जिस्म का दर्जे हरारत माहौल के दर्जे हरारत के साथ बदलता रहता है। नतीजे में ये होता है कि कभी भी अपने जिस्म का दर्जे हरारत एक जैसा मेंटेन यानी बराबर नहीं रख सकेंगे, बरकरार नहीं रखेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा समर स्लीप या विंटर स्लीप, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में चले जाते हैं। तो जब ये जमीन के गड्ढों के अंदर चले जाएंगे तो वहां पर फिर अमल तनफुस कैसा करेंगे, तो वहां पर अमल तनफुस करने के लिए वहां पर भी क्या करेंगे, जिल्द का इस्तेमाल करेंगे। इम्तिहान में ये बात बहुत पूछी जाती है कि जब मेंढक हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में होता है, समर स्लीप में होता है, विंटर स्लीप में होता है, सरमा की नींद और गर्मा की नींद में होता है, तब उसके जिस्म में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है, कार्बन डाइऑक्साइड का खारिज करना है, ये अमल कौन अंजाम देता है, तो ये अमल कौन अंजाम देता है, जिल्द। इसलिए याद रखना, जिल्द का इस्तेमाल खुश्की में भी होगा, जिल्द का इस्तेमाल पानी में भी होगा, जिल्द का इस्तेमाल हाइबरनेशन एस्टिवेशन में भी होगा। ठीक ना। अब ये हो गया रेस्पिरेशन ना। अब फेफड़ों की साख्त की अगर बात करते हैं, तो इनकी जो फेफड़ों की साख्त होती है, तो उसमें दो थैली नुमा उज़्व होते हैं, सैटेलाइट है ना। अगर आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर इस तरह से देखिए डायरेक्शन बताइए, है ना, ये अंदर इस तरह से जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो है ना, इनके अंदर दो, एक जोड़ी लंग्स की है, यानी दो थैली नुमा उज़्व होते हैं। फिर ये कहाँ पर होता है, तो ये सीने के ऊपरी हिस्से में होता है, यानी अपर थोरैसिक रीजन में होता है। कल भी हमने ये बात बोला था कि जो फ्रॉग होता है उसके जिस्म में सिर्फ दो पार्ट होते हैं, एक होता है सर, एक होता है धड़। तो अब जो धड़ वाला पार्ट है, उस धड़ वाले पार्ट की भी अगर हम बात करेंगे, तो धड़ वाले पार्ट में भी ऊपरी हिस्से की हम बात करें, जिस तरह से हम हमारी बात करते हैं तो हम कहते हैं ये छाती और पेट, इसका मतलब है छाती में यानी ऊपर वाले हिस्से में जो ऊपरी हिस्सा होता है सीने का, उसको बोला जाता है अपर थोरैसिक रीजन। और उस अपर थोरैसिक रीजन में क्या मौजूद होते हैं, फेफड़े मौजूद होते हैं। दूसरा, सांस लेने के अमल की अगर बात करते हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करते हैं, तो हवा जो होती है वो नथनों में दाखिल होती है, यानी यहाँ जिस तरह से बता रहे हैं, हवा नथनों में दाखिल होती है, फिर बक्कल कैविटी से गुजरती है, यानी मुंह के जरिए गुजरती है, और मुंह के जरिए वो आखिर में कहाँ पर पहुंच जाएंगी, फेफड़ों तक चले जाएंगे। अब एक बहुत अहम बात लोगों को याद रखना है कि हमारा जो जिस्म है, हमारे जिस्म के अंदर जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उसके नीचे एक स्केलेटल मसल्स होती है, एक हड्डियों से जुड़ी हुई है, क्या बोलेंगे उसको, गोश्त जैसा होता है, उजला होता है। देख, मेंढक की अगर बात करते हैं, अच्छा, वो जो उजला होता है या जो मसल्स होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डायफ्राम। क्या बोला जाता है उसको, डायाफ्राम। लेकिन मेंढक के अंदर ये डायाफ्राम नहीं होती, मेंढक में डायाफ्राम नहीं होती। तो सवाल ये आता है कि मेंढक के अंदर फिर अमल तनफ्फुस कौन अंजाम देगा, तो याद रखना है इसके लिए बक्कल कैविटी पंप का काम करता है। यहाँ पर कौन काम करता है, बक्कल कैविटी होती है, और वो बक्कल कैविटी क्या कर रही होती है, पंप। बक्कल कैविटी किसको बोला था हमने, माउथ को। ये जो माउथ है ये बक्कल कैविटी। इसलिए आप देखो कि फ्रॉग क्या करता है, जब भी अमल मतलब जब फुर्सत में बैठा हुआ ना, इस तरह से कर रहा होता है, तो अपने माउथ के जरिए वो क्या कर रहा होता है, अंदर लंग्स की हेल्प कर रहा होता है, ताकि लंग्स क्या हो जाए, फैल जाए, सिकुड़ जाए, फैल जाए, सिकुड़ जाए, ताकि आसानी से क्या हो,
गैसेस का क्या हो, एक्सचेंज हो, गैसेस का सप्लाई। बात समझ रहे हैं? नाउ जो हवा को क्या करती है, फेफड़ों के अंदर क्या करती है, ढकती रहती है। तो इस तरह से वो क्या करता रहता है, हवा को फेफड़ों के अंदर क्या करता रहता है, धकेलते रहता है। तो बुनियादी तौर पर याद रखना है कि हमारे अमल तनफ्फुस में और फ्रॉग के अमल तनफ्फुस में एक जो बड़ा फर्क है वो ये है कि फ्रॉग के अमल तनफ्फुस में डायाफ्राम नहीं होती। कौन नहीं होता है, डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है, इस तरह की साख्त आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हम आमतौर पे इंसानों के लंग्स बनाते हैं तो उसके नीचे इस तरह की एक शक्ल बनाते हैं, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। तो इनकी जो लंग्स होते हैं उसके नीचे ये डायाफ्राम क्या होती है, गैर मौजूद होती है, डायाफ्राम के पास नहीं होती। ये डायाफ्राम क्या करती है, डायाफ्राम हमारे जो लंग्स है उसके साइज को बढ़ाती है। लंग्स का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके अंदर हवा के लिए जगह बनेगी। हवा के लिए जगह अगर बनेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा हवा को क्या करेगी, स्टोर करेगी। यानी हमारे लंग्स के सिकुड़ने और फैलने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, डायाफ्राम। लेकिन ये डायाफ्राम मेंढक के जिस्म में मौजूद नहीं होती है। याद रहेगा, बात समझ में आई? अबू बकर भैया नींद आ रही क्या, थोड़ी थोड़ी? अर्शियान कैमरा ऑन कर यार। अर्शियान मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, मैं कैसे कंफर्म करूं? महफूज मौलाना, जी मोहम्मद महफूज। ना, अब कुछ मखसूस हालात होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, अमल तनफ्फुस करना होता है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि इनके जिल्द जो है ये अमल तनफ्फुस अंजाम देती है। तो कौन से हालात में, तो हम ये कहते हैं कि मखसूस हालात में जो अमल तनफ्फुस होता है, कौन से मखसूस हालात है, एक होता है जिसको हम कहते हैं मौसम गर्मा की, यानी जिसको हमने क्या बोला, एस्टिवेशन या समर स्लीप। और दूसरा है मौसम सरमा की, जिसको हमने बोला हाइबरनेशन या विंटर स्लीप। तो इन दोनों हालतों में मेंढक क्या करता है, सिर्फ अपनी जिल्द का इस्तेमाल करता है और अपनी जिल्द के जरिए क्या करता है, सांस लेने का अमल अंजाम देता है। तो ये बुनियादी चीज याद रखना है कि जो मेंढक होते हैं उनके अंदर जब हमारे तनफ्फुस की हम बात करते हैं तो स्पेशल हालात में, मखसूस कंडीशंस में, स्पेशली एस्टिवेशन हाइबरनेशन, जब वो जमीन के गड्ढों के अंदर होगा तब वो बस एक ही तरीके से अमल तनफ्फुस अंजाम देगा और वो है उसकी जिल्द। इस दौरान जो जिस्मानी अफआल है, हमने ये बात पढ़ा था कि जब एस्टिवेशन या हाइबरनेशन में होता है तो वो अपने सारे जिस्म के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, जो तहव्वुली अमल है, वो सबको क्या कर देता है, स्टॉप। क्यों करता है, क्योंकि उसको उस वक्त एनर्जी की जो डिमांड है, जो तवानाई है, वो क्या हो रही होती है, ज्यादा लग रही होती है। तो कम से कम तवानाई खर्च हो, इसलिए वो क्या करेगा, सिर्फ जिल्द का इस्तेमाल करेगा, फेफड़ों का और बकल कैविटी का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो याद रखना है, जब वो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में होता है तो वो जितने भी जिस्मानी अफआल है उन सबको क्या कर देता है, सुस्त कर देता है, कम कर देता है। और फेफड़े जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पर क्या बन जाते हैं, गैर फ़आल। क्या हो जाते हैं, मुकम्मल तौर में गैर फ़आल हो जाते हैं। ना, अब एक और निज़ाम की हम बात कर रहे हैं, वो है दौरान खून। अगर आप डायग्राम देख रहे होंगे तो डायग्राम के अंदर सब क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिल दिख रहा है, यहाँ पर खून की नालियाँ दिख रही है, ठीक है। कुछ खून की नालियाँ यहाँ पर लाल कलर की है, कुछ खून की नालियाँ यहाँ पर ब्लू कलर की है। ये क्यों है, क्या है, ठीक है। सबसे पहले कि इनका जो दौरान खून है, उस दौरान खून को बोला जाता है बंद निज़ाम दौरान खून। क्या बोला जाता है, बंद निज़ाम दौरान खून। पहली बात तो अगर आपको याद होगा, आप लोगों ने ये बात पढ़ा होगा कि दौरान खून दो तरह के होते हैं। एक दौरान खून होता है जिसको हम कहते हैं बंद, और एक दौरान खून होता है जिसको हम कहते हैं खुला। बंद और खुला का मतलब क्या होता है, एक को इंग्लिश में कहते हैं क्लोज, दूसरे को कहते हैं ओपन। ये जो नाम आया है किसकी बुनियाद पर आया, ये आया है खून के सप्लाई की बुनियाद पर। अगर खून का सप्लाई बंद नालियों के जरिए हो रहा है, यानी दिल से जो भी खून निकलेगा अगर वो नालियों के जरिए जिस्म के अलग अलग आशा तक जाएगा तो इसका मतलब ये है खून को बंद करके, यानी नालियों के अंदर आप सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा होता है खुला। खुला दौरान खून में क्या होता है, उस जानदार के अंदर खून की नालियां मौजूद नहीं होती। तो जिन जानदारों के अंदर खून की नालियां मौजूद होती है उस तरह के खून के दौरानी निज़ाम को बोला जाता है बंद दौरान खून का निज़ाम। और जहाँ पर खून की नालियां नहीं होती, यानी
دل سے جب خون نکلتا ہے تو اس میں خون کی نالیاں نہیں ہوتی ہے، تب اس کو بولا جاتا ہے کھلا دوران خون کا نظام. نہ میں اکثر اس کو سمجھانے کے لیے اگزامپل دیتا ہوں کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو پانی چاہیے، تو پانی جو بہتا تھا وہ کہاں بہتا تھا؟ ندیوں میں کھلا کھلا. لیکن آج جب لوگوں کو چاہیے تو ہم سٹی میں رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پانی آتا ہے ٹینک میں، اور ٹینک سے آتا ہے پائپ لائن کے ذریعے. تو جو پانی بہ رہا ہے وہ کس میں بہ رہا ہے؟ پائپ لائنس میں. یعنی پانی کو کلوز کر کے بند کر کے پائپ لائن کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارے گھروں تک پہنچایا جاتا ہے. تو ویسے ہی جو جاندار ہوتے ہیں جن کے اندر بند دوران خون کا نظام ہوتا ہے، ان کے اندر خون جو بھی دل سے نکلتا ہے وہ خون کی ندیوں کے ذریعے آتا ہے، اور جن کے اندر کھلا دوران خون کا نظام ہوتا ہے ان کے اندر دل سے جو بھی خون نکلے گا وہ ان کے جسم میں ڈائریکٹلی پھیل جائے گا، وہاں پر کوئی بھی نالیوں کا نظام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو فراک کے معاملے میں پہلی بات یاد رکھنا ہے کہ ان کے پاس جو دوران خون کا نظام ہے وہ کون سا والا ہے؟ بند دوران خون کا نظام ہے. اور بند دوران خون کے نظام کو بولا جاتا ہے ترقی یافتہ اور منظم نظام. ترقی یافتہ یا منظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویل ڈیولپ فارم، بہت اچھی طرح سے بنا ہوا نظام. اور منظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منظم کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر کیا رکھا جائے؟ کنٹرول، ریگولیٹری. جیسا فراک کے پیچھے اگر کوئی شکاری لگ گیا تو فراک کو اس وقت کمانا ہی چاہیے، انرجی چاہیے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی دل کی دھڑکن کو بڑھا دے گا. دل کی دھڑکن اگر بڑھے گی تو خون کا سپلائی بڑھے گا، خون کا سپلائی بڑھے گا تو غذا کا سپلائی بڑھے گا، غذا کا سپلائی بڑھے گا تو توانائی کا، انرجی کا پروڈکشن بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کو طاقت ملے گی اور وہ کیا کرے گا؟ جلدی جلدی تیرے گا یا جلدی جلدی جمپ کرتا ہوا بھاگ جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا جو خون کا دوران ہے، اس کی جو رفتار ہے، اس کو یا تو وہ بڑھا سکتا ہے یا اس کو کم کر سکتا ہے. جیسا ہم ہیں، ہمارے جسم میں بھی بند دوران خون کا نظام ہے. اسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کو ہماری انرجی بڑھانا ہے تو ہم بہت آسانی سے اس کو بڑھا سکتے ہیں. جیسا ایکسرسائز جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکسرسائز کرتے وقت آپ کے جسم کو کیا چاہیے؟ توانائی زیادہ چاہیے. تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو دل کی دھڑکن ہے وہ بڑھ جاتی ہے، خون کا جو بہاؤ ہے وہ بڑھ جاتا ہے نا. ہم بولتے ہیں کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح سے. دوسرا، ترقی یافتہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب ایوولوشن کی بات کریں گے، جب ہم ارتقاء کی بات کریں گے تو ہم یہ پڑھیں گے کہ جو شروعات میں جو جاندار بنے تو ان کے اندر اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا. دھیرے 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 تبدیلی آئی، اور آج جو جاندار موجود ہے ان جانداروں کے اندر یہ جو نظام ہے بند دوران خون کا نظام یا کلوز سرکولیٹر سسٹم، یہ ایک ترقی یافتہ نظام ہے. اب نظام دوران خون کے ان کے پاس کون کون سے اعضاء ہیں؟ تو ان میں 3 ہوتے ہیں. تو بنیادی جو اجزاء ہیں ان میں سب سے پہلا ہوتا ہے دل، دوسرا ہوتا ہے خون کی نالیاں، اور تیسرا ہوتا ہے خون. تو فراک کے جسم کے اندر جب ہم دوران خون کی بات کرتے ہیں، دوران نظام خون کی بات کرتے ہیں، تو اس میں 3 بڑے بڑے پارٹس ہوتے ہیں. پہلا بڑا پارٹ ہوتا ہے دل، دوسرا بڑا پارٹ ہوتا ہے خون کی نالیاں، اور تیسرا بڑا پارٹ ہوتا ہے خود خون. لکھ لیجیے گا بھائی. ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں یاد رکھنا ہے کہ کون کون ہے؟ دل ہے، خون کی نالیاں ہے، اور تیسرا کون ہے؟ خون ہے. یہ 3 چیزیں مل کر اس کا نظام دوران خون بناتا ہے. جیسا بھی ہم نے بولا کہ ریسپیریٹری سسٹم میں کیا کیا ہے، تو ہم نے کہا کہ جلد ہے، پھیپڑے ہیں، اور ماؤتھ کیویٹی یعنی بکل کیویٹی ہے. ان تینوں سے ہمارے تنفس کا نظام بنتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم کی ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ جیسا کہ نلی ہوتی ہے اور 2 گلینڈ ہوتے ہیں، خطوط ہوتے ہیں، ویسے یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے دوران خون کے نظام میں کتنے پارٹ آتے ہیں؟ 3 پارٹس آتے ہیں. کون کون سے آتے ہیں؟ ایک آتا ہے دل، دوسرا آتا ہے خون کی نالیاں، اور تیسرا آتا ہے خود خون. اب بند نظام کا مطلب کیا ہے؟ بند نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خون جو ہوتا ہے ہمیشہ نالیوں کے اندر بہتا ہے اور براہ راست بافتوں یا ٹشو کے رابطے میں نہیں آتا. یاد رہے گا کہ ڈیفینیشن آپ نے لکھ کے رکھنا ہے. ٹھیک. اب سب سے پہلی بات یاد رکھنا ہے دل کی. ان کے دل کی اگر ساخت کی بات کرتے ہیں تو ان کا دل 3 خانوں پر مشتمل ہے. جیسا ہمارے دل کی اگر بات کریں تو ہمارے دل کے اندر کتنے خانے ہیں؟ 4. فراک کی بات کرتے ہیں، مینڈک کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر دل میں کتنے خانے ہوتے ہیں؟ 3. جو 3 خانے ہوتے ہیں اس میں سے 2 جو ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے ایٹریا. ایک ہوتی ہے دائیں ایٹریا، ایک ہوتی ہے بائیں ایٹریا، اور ایک ہوتی ہے وینٹریکا. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ ایٹریا وینٹریم کرتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایٹریا ہے یہ خون کو قبول کرنے والی، خون کو ریسیو کرنے والا چیمبر ہے.
खाना है, और वेंट्रिया खून को पंप करने वाला, खून को सप्लाई करने वाला, खून को मुहैया करने वाला चैम्बर है। तो इसलिए हम आगे चल के जब ह्यूमन सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, वहां पर ये बात और क्लियर होगी। और फ्रॉग इस चैप्टर को लेने का मेरा मेन रीजन यही था कि मैं आपके सामने रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो सिस्टम है छोटे छोटे जो फ्रॉग के बॉडी में बताए, ये सब ये आपके सामने रखूं, ताकि जब हम ह्यूमन सिस्टम पढ़े तो आपको याद आए कि हाँ यार हमने फ्रॉग के जिसमें ये चीजें पढ़ी थी, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें थी, अब हम डिटेल में ह्यूमन की बात करें तो आपको वो चीजें वहां पर और अच्छे से समझ में आए। इसलिए मैंने ये चैप्टर का पहले सिलेक्शन किया, ठीक है। तो ये चैप्टर जैसे हो जाएगा तो कल से हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो ह्यूमन बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि जो मेंढक है, मेंढक के अंदर जो दिल होता है वो 3 खानों पर मुश्तमिल है। 3 खानों में से ऊपर वाला जो खाना है उसको बोला जाता है एट्रियम, नीचे वाला जो खाना होता है उसको बोला जाता है वेंट्रियम। एट्रियम का काम क्या होता है? खून को कबूल करना, खून को रिसीव करना, और वेंट्रिकल का काम क्या होता है? खून को पंप करना, खून को सप्लाई करना। तो जब हम ये बोलते हैं कि हमारा दिल धड़क रहा है और दिल के धड़कने की वजह से खून पूरे जिस्म को क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है। तो खून का वो कौन सा पार्ट है जो, सॉरी, दिल का कौन सा पार्ट है जो खून को सप्लाई कर रहा है, पंप कर रहा है? तो वो पार्ट होता है वेंट्रियम या वेंट्रिकल। तो 2 खाने होते हैं जो खून को रिसीव करते हैं, एक खाना होता है जो खून को क्या कर रहा होता है? सप्लाई कर रहा होता है। अब यहाँ पर आप देखो डायग्राम में, तो आपको बात समझ में आएगी कि यहाँ पर है डायट्रियम और यहाँ पर है बायट्रियम, नीचे है वेंट्रिकल, है ना। तो ये जो है ये पूरा एक वेंट्रिकल है, और यहाँ पर एक खाना है और यहाँ पर एक खाना है। तो एक जो है उसको बोलते हैं डायट्रियम, दूसरे को बोलते हैं बायट्रियम। और दाएं और बाएं एट्रियम कहाँ जाके खुल रहा है? वेंट्रिकल। तो होता क्या कि हमारे जिस्म के अंदर जब खून आता है तो खून 2 अलग अलग रास्ते से आता है। एक खून जो रहता है उसके अंदर ऑक्सीजन रहती है, खून जो होता है बगैर ऑक्सीजन रहती है। वैसे ही फ्रॉग के बॉडी में होता है, एक खून जो होता है वो ऑक्सीजन वाला होता है, एक बगैर ऑक्सीजन। आमतौर पे हम जब उर्दू में कहते हैं तो हम कहते हैं साफ खून और गंदा खून। उर्दू में हम जो टर्मिनोलॉजी, जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो साफ और गंदा खून। तो साफ खून का मतलब क्या है? ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन है। गंदा खून का मतलब ये है ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये जो लाल रंग के आपको एरो दिख रहे हैं, ये लाल रंग के एरो का मतलब है कि यहाँ पर कौन सा खून आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर जो खून है वो कौन सा वाला है? ऑक्सीजन वाला है। और ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये ब्लू लाइन क्या बता रही है? ये बता रही है बगैर ऑक्सीजन वाला खून, यानी इसके अंदर क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आप दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कलर चेंज दिख रहा है। ये कलर का मतलब क्या है? इस कलर का मतलब है अब यहाँ पर मिक्स टाइप ऑफ खून है, यानी ऐसा खून है जो गंदा भी है और साफ भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बुनियादी चीज को आपने याद रखना है कि जो खून होता है फ्रॉग के जिस्म में, वो जब भी दिल सप्लाई करता है तो वो खून मिक्स टाइप का होता है, यानी उसमें दोनों भी खून होते हैं, ऑक्सीजन वाला खून भी होता है और बगैर ऑक्सीजन वाला खून। दोबारा बात सुनिए, हमारे जिस्म के अंदर जो खून सप्लाई होता है वो पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड होता है, सिर्फ उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल होती है, सिर्फ साफ खून होता है। लेकिन मेंढक के जिस्म में ऐसा नहीं होता। मेंढक के जिस्म से, मेंढक के दिल से जो खून निकलता है वो मिक्स टाइप का होता है, उसमें ऑक्सीजन भी वाला खून भी होता है और बगैर ऑक्सीजन वाला खून भी होता है। तो इम्तिहान में ये बात पूछी जाती है, ठीक है। अब आखिर में एक बात और सुनो कि दिल जो होता है उसके अंदर एक वेंट्रिकल होती है और उसमें अंदर ऑक्सीजन वाला खून होता है, और एक होती है बगैर ऑक्सीजन वाला खून, और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमेशा जिस्म को जो खून दिल से सप्लाई किया जाएगा, दिल से मुहैया किया जाएगा, वो खून मिक्स टाइप होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होगी और बगैर ऑक्सीजन वाला खून भी मौजूद होगा। अब एक और बात कि इसकी जो दिल है, दिल के ऊपर एक हिफाजती गिलाफ होता है। दिल का ऊपर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को बोला जाता है पेरिकार्डियम। हम आगे चल के हम इंसानों के अंदर भी ये बात पढ़ेंगे कि इंसानों का भी जो दिल होता है उसके ऊपर क्या होती है? पेरिकार्डियम। उसको ऐसा समझ लीजिए, हम आगे चल के एक बात पढ़ेंगे कि हमारा जितने भी जानदार है, उन जानदारों का जो जिस्म है वो इतना जबरदस्त बना हुआ है कि ऐसा समझ लीजिए कि आपको कोई एक पार्सल भेज रहा है,
लेकिन जब वो पार्सल भेजने वाले हैं तो उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें आपको भेजना है। तो आप क्या करते, मान लीजिए कि मोबाइल भी भेजना है और हेडफोन भी भेजना है, लैपटॉप भी भेजना है, माउस भी भेजना है, तो आपने लैपटॉप को एक अलग रैप में रखा, एक अलग कवर में रखा, मोबाइल को अलग से रखा, माउस को अलग से लिपटा, इस तरह से उन सबको अलग अलग कवर में लिपेटा, फिर उन सबको एक साथ एक और बड़े बॉक्स के अंदर लिपेटा, फिर उस बॉक्स को एक अलग से बड़े से डब्बे में लपेटा और फिर उसके ऊपर एक और कवर चढ़ाया। तो हमारा जिस्म ऐसा ही है कि हमारे जितने अलग अलग ऑर्गन हैं, जितने भी अलग अलग अज़ू हैं, उन सब के ऊपर एक गिलाफ चढ़ा हुआ है। तो दिल का जो गिलाफ है, उस गिलाफ को बोला जाता है पेरिकार्डियम। क्या बोला जाता है उसको? पेरिकार्डियम। तो हम आगे चल के जब दिल के गिलाफ की बात करेंगे, लंग्स के गिलाफ की बात करेंगे, ऐसा अलग अलग नाम पड़ेंगे। तो क्योंकि एनसीईआरटी में फ्रॉक के मामले में, मेंढक के मामले में यहाँ पर गिलाफ मेंशन है, इसलिए हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं। तो याद रखना है कि दिल के ऊपर जो भी गिलाफ होता है उसका नाम क्या होता है? पेरिकार्डियम। नाउ अब एक और बात याद रखना है, तीन उनका जो जिस्म होता है उसके अंदर जो दिल होता है, उस दिल के अंदर कितने खाने होते हैं? तो हमने कहा कि 3 खाने होते हैं। तो 3 खानों वाला जो दिल होता है, ये एम्फीबिया की सबसे बड़ी पहचान है। यानी जो भी जलचरीय जानदार होंगे, उन जलचरीय जानदारों के अंदर जो दिल होगा वो 3 खानों पर मुश्तमिल होगा। और इम्तिहानात में अक्सर इस पर सवाल पूछा गया है कि इस तरह के नज्म की वजह से या इस तरह के दिल की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या इशू आएगा या क्या नुकसान होगा। तो इसको याद रखना है कि नुकसान ये होता है कि हमेशा जो खून है वो मिक्स हो जाता है, हमेशा जो खून है वो क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। ये हमेशा खून जो है वो मिल जाता है। यानी अभी आपने क्या किया, खून को फिल्टर किया, सॉरी खून के अंदर ऑक्सीजन ऐड किया, अब वापस से आपने ऐसा खून ऐड कर दिया जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो बार बार हो ये रहा है कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, साफ खून और गंदा खून क्या होते जा रहे हैं? मिक्स होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 खानों वाला जो दिल है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो खून जिस्म को सप्लाई होगा, वो खून के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी, ऑक्सीजन की जो मिकदार होगी वो कैसी होगी? कम होगी। तो ये सबसे बड़ा 3 खानों वाला खून का नुकसान है। ये इम्तिहान में पूछा जाता है, इसको याद रखना है। अब एनसीईआरटी में ये बात बोली नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के लाइन के दरमियान से जो सवाल आता है वो इस तरह का आता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? महफूज, अबू बकर, अर्शान? अर्शान भैया डाउट है क्या? ना, अब खून का बहाव और बैरूनी साख्ते की हम बात करें ना, खून के बहाव की और उसकी मखसूस साख्तों की अगर बात करते हैं तो इनमें स्पेशल साख्तें क्या होती हैं? इनमें 2 स्पेशल साख्त होती है, इनमें 2 स्पेशल पार्ट होते हैं। एक को बोला जाता है साइनस वेनसस। क्या बोला जाता है? साइनस वेनसस। और दूसरा होता है कोनस आर्टेरियोसिस। कौन सा होता है? कोनस आर्टेरियोसिस। इनको लिख कर रखिए, इनको याद करना है। एक होता है जिसको बोला जाता है साइनस वेनसस और दूसरा होता है कोनस आर्टेरियोसिस। ये जो साइनस वेनसस ये कहाँ जाके जुड़ता है? ये दाएं एट्रियम से जुड़ता है, यानी जो हमारा राइट दिल का जो राइट हिस्सा होता है, राइट एट्रियम होती है, उससे जाके जुड़ता है। और ये जो राइट एट्रियम ये क्या करता है? ये जिस्म से खून को वसूल करने का काम करता है। अब साइनस वेनसस के जरिए दिल को जो खून आता है वो खून आता है बगैर ऑक्सीजन वाला। ठीक, दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा खून के साथ एक दिल के साथ एक पार्ट जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसिस। क्या होता है कि ये जो होता है ये वेंट्रिकल से जुड़ा होता है, इससे जुड़ा होता है, वेंट्रिकल की साइड से जुड़ा होता है। और ये क्या करता है? दिल से जो भी खून आएगा पहले ये वेंट्रिकल आर्टेरियोसिस के पास जाएगा, यानी इसके पास जाएगा, और ये क्या करेगा? कोनस आर्टेरियोसिस उसको खून को पूरे जिस्म में क्या करेगा? तकसीम करेगा, या खून को पूरे जिस्म को क्या करेगा? सप्लाई। इसका मतलब ये हो गया कि दिल जिस्म से ना तो डायरेक्ट खून ले सकता है और ना जिस्म को डायरेक्टली खून दे सकता है, यानी टोल लाके लगा हुआ है। कौन सा टोल लगा हुआ है? खून को लेने के लिए एक टोल लगा हुआ है। वो टोल कौन है? साइनस वेनस।
फिर खून को देना है तो एक और टोल लगा हुआ, वो कौन सा है, कोनस आर्टेरियोसिस। तो दिल को जब भी खून लेना है या देना है तो लेने के लिए भी उसको लेना किससे है, साइनस वेनस से लेना है, और देना है तो किसको देना है, कोनस आर्टेरियोसिस। फिर वो पूरे जिस्म में क्या करेगा, खून मुहैया करेगा, सप्लाई करेगा। ठीक है। आमतौर पे खून की जो गर्दिश होती है या खून का जो दौरान होता है वो कैसा होता है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर दो तरह की नालियां हैं, एक है वरीद और दूसरी है शरियानी। वरीद जो होती है उसको कहते हैं वेन्स, और जो शरियानी होती है उनको हम कहते हैं आर्टरीज। नाउ वरीद क्या करती है, वरीद जिस्म से खून जो होती है वो दिल तक लेकर जाती है। तो वरीद क्या करती है, खून जो होता है उसको जिस्म से दिल तक लेकर जाएगी, और शरियानी क्या करेंगी, दिल से खून को कहाँ लेकर जाएंगी, जिस्म तक लेकर जाएंगी। लेकिन जब ये ले जाने और लाने का काम करेगी तो ये बीच में टोल बना के तक जाएगी। जैसा मान लो कि यहाँ पर दो हिस्से हैं, एक है साइनस वेनस और एक है कोनस आर्टेरियोस। फिर यहाँ पर है शरियाने और यहाँ पर है वरीद। तो वरीद क्या करेगी, जब भी जिस्म से खून को सप्लाई करना है तो वरीद ये देगी साइनस वेनस को, और साइनस वेनस देगा दिल को। फिर दिल को जब खून सप्लाई करना है जिस्म को तो वो सबसे पहले देगा कोनस आर्टेरियोस को, फिर वो देगा शरियानों को। तो ये जो यहाँ पर डायग्राम बनाई हुई है, डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सिस्टमैटिकली है कि वरीद से जो भी खून आएगा वो जाएगा कोनस आर्टेरियोस और साइनस वेनस को, और दिल से जब खून को पूरे जिस्म को ले जाना है यानी शरियानों को देना है तो उससे पहले वो जाएगा कोनस आर्टेरियोस, फिर कोनस आर्टेरियोस से हो जाएगा शरियानों को। भाई कुछ बात समझ रही है, सर के ऊपर से जा रहा है सब ना। अब एक और बात याद रखना है, साइनस वेनस के मामले में जो सबसे अहम बात याद रखना है वो है उसका शेप। कि साइनस वेनस जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है। कैसा होता है, ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय होता है। तो साइनस वेनस का जो शेप होता है वो त्रिकोणीय होता है, ट्रायंगुलर होता है, और दिल के कहाँ पर होता है, दिल के पिछली जानिब होता है। साइनस वेनस कहाँ पर होता है, दिल की पिछली जानिब में होता है। ये इम्तिहान में पूछे जाने वाला सवाल है, इसको याद रखना। वैसे ही कोनस आर्टेरियोसिस की बात करेंगे तो कोनस आर्टेरियोसिस कैसा होता है, ये गोल होता है और कहाँ पर होता है, दिल के आगे होता है। लेकिन इम्तिहान में जो सबसे ज्यादा सवाल किया जाता है वो किया जाता है साइनस वेनस पर, क्योंकि एनसीईआरटी में साइनस वेनस का शेप बताया हुआ है। तो साइनस वेनस ये ट्रायंगुलर होता है, त्रिकोणीय होता है, और दूसरा याद रखना है कि दिल के पीछे की जानिब होता है। ठीक, अब हमारा जो जिस्म है उसके अंदर एक तो हो गया ट्रांसपोर्ट, दिल से डायरेक्ट खून पूरे जिस्म को जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी या बुनियादी ट्रांसपोर्ट या बुनियादी सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जो फ्रॉग होता है उसके जिस्म में कुछ सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी होता है, यानी हम आमतौर में जिसको ना बाईपास बोलते हैं ना, शॉर्टकट, तो वैसा भी यहाँ पर होता है। तो दो तरह के यहाँ पर बाईपास होते हैं या दो तरह के सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी मान लो कि आपके घर में एक पानी का कनेक्शन है और एक बोर है, तो पानी जो हमारे पास जो घर तक नल आता है, नल का पानी आता है जिसको हम म्यूनिसिपैलिटी का वाटर बोल रहे हैं, वो जो है वो हफ्ते में कभी कभी आएगा या महीने में आएगा। लेकिन हमारे घर में एक हमने शॉर्टकट बना के रखा है जिससे हमको हमेशा सप्लाई होता रहता है। तो एक हो गया हमारा प्राइमरी और एक हो गया हमारा सेकेंडरी सोर्स। एक हमारा बुनियादी है और एक हमारा दूसरा वाला सोर्स है। तो वैसे ही फ्रॉग के जिस्म में भी जो खून का सप्लाई करने का मैकेनिज्म होता है उसमें एक तो है वरीद जो खून लेकर आ रहा है, जिस्म से खून ला रहा है दिल को, लेकिन एक और सेकेंडरी रास्ता होता है जहाँ से खून जिस्म से कहाँ पर आ रहा होता है, दिल के पास आ रहा होता है। तो इस तरह से मेंटल जो होती है उसके अंदर दो इस तरह के रास्ते होते हैं। एक को बोला जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम और दूसरा होता है उसको बोला जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। नाउ रीनल पोर्टल और हेपेटिक पोर्टल अगर आप उसकी डायग्राम देख रहे हैं तो डायग्राम से आपको बात समझ में आ गया होगा। रीनल जब भी लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं तो रीनल लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं गुर्दों के लिए। रीनल लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं अर्शद दादा, गुर्दों के लिए। यानी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किडनी के लिए। तो जब भी हमारी किडनी से खून को दिल तक लेकर आना है, किडनी से खून को कहाँ तक लाना है, दिल तक लेकर आना है, या हम ये कहेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर लोअर पार्ट से यानी जो मेंढक है उसके जिस्म में जो भी लोअर पार्ट से यानी निचले धड़ है और गुर्दे हैं
उनके दरमियान में खून का राब्ता बनाना है और फिर उसको दिल तक लेकर आना है, ये काम करने वाला जो सिस्टम है उसको बोला जाता है रीनल पोर्टल सिस्टम। दूसरा होता है हेपेटिक पोर्टल। हेपेटिक पोर्टल क्या करता है, हमारी जो आंतें हैं यानी हमारी इंटेस्टाइन है और दूसरा हमारा जिगर है, तो इन दोनों के दरमियान खून को क्या करता है, बराह रास्त ट्रांसफर करता है। तो क्या करेगा वो, आंतों से खून को लेकर आएगा जिगर के पास और जिगर से फिर वो खून किसके पास आएगा, दिल के पास। वैसे ही रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या करता है, जो लोअर बॉडी पार्ट से उससे खून को लेकर आएगा किडनी के पास और किडनी से खून को लेकर आएगा फिर दिल के पास। तो इस तरह से दो सिस्टम होते हैं, एक होता है जिसको बोला जाता है रीनल पोर्टल और एक को बोला जाता है हेपेटिक। नाउ जिगर से जो खून आ रहा है उसको हेपेटिक पोर्टल क्यों बोलते हैं, तो हम लोग आगे चल के जब ह्यूमन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये पढ़ेंगे कि जिगर के अंदर स्पेशल टाइप के खलीए होते हैं, उनको बोला जाता है हेपेटिक सेल। क्या बोला जाता है इनको, हेपेटिक सेल या हेपेटिक खलीए। इसलिए इस सिस्टम का नाम क्या रख दिया गया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल जिसको कहते हैं, जैसा कि आजकल हमारे पास है ना, हम अब आप गए होंगे जब आप नीट का फॉर्म भरने गए होंगे तो वो उसने बोला हुआ कि पोर्टल बंद है। पोर्टल का मतलब होता है नेटवर्क। पोर्टल का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। पोर्टल का मीनिंग होता है नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है कि आंतों से जिगर खून का एक नेटवर्क बना हुआ है, फिर जिगर से दिल खून का क्या बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है। वैसे ही लोअर बॉडी पार्ट से किडनी, किडनी से दिल क्या बना हुआ है, खून का, खून की नालियों का जाल। तो दो तरह के जाल होते हैं। अब याद रखना कि हमारे जिस्म में इनमें से कौन सा वाला जाल नहीं होता या कौन से वाला सिस्टम नहीं होता, तो इंसानों के जिस्म में रीनल पोर्टल नहीं होता। इम्तिहान में ये बात पूछी जाती है, तो इसको याद रखना, ठीक है। अब एक और बात याद रखना है, जो नीट फोकस है वो क्या है, मेंढक में दोनों हेपेटिक और रीनल पोर्टल सिस्टम वाज़ेह तौर पर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम बात कर दें पोर्टल सिस्टम, जो कि एक रीनल पोर्टल सिस्टम है, वो हमारे जिस्म में नहीं होता। फिर पोर्टल सिस्टम में दिल में जाने से पहले खून को मखसूस आज़ा यानी जिगर या गुर्दे से गुजरते हैं, यानी खून जो भी जाएगा। अब इसको समझ लीजिए कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमको बताया कि खून जो है वो कहाँ जाने वाला है, खून जाने वाला है हमारे जिस्म के आज़ा। खून जो आने वाला है ये इंटेस्टाइन से आने वाला है, तो ग़िज़ा लेकर आने वाला है। जब ये ग़िज़ा लेकर आएगा तो ग़िज़ा को क्या करेगा, ग़िज़ा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो नुकसानदार है, तो नुकसानदार चीज़ों को निकालना है। तो पहले उसको लेकर जाएंगे किडनी के पास ताकि किडनी उसको फिल्टर करे, उसको लेकर जाएंगे जिगर के पास ताकि जिगर उसको क्या करे, खत्म कर दे। तो इस तरह से खून पूरे जिस्म में फैलाने से पहले, खून को पूरे जिस्म में सप्लाई करने से पहले खून की जांच की जाती है, और वो खून की जांच करने वाले ये दो सिस्टम है, ठीक है। अब एक और सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है, उसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो लिम्फेटिक सिस्टम भी ये एक तरह की नालियों का निजाम है। लेकिन ये जो नालियों का निजाम है, इस नालियों से खून नहीं बहता, फिर क्या बहता है, तो इन नालियों से बहता है लिम्फ। क्या बहता है, लिम्फ। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ ये एक बगैर कलर का, उसको इंग्लिश में बोला जाता है कलरलेस फ्लूइड है। और ये जो कलरलेस फ्लूइड है ये किससे बनता है, ये बनता है खून से। इसका मतलब खून में और लिम्फ में फर्क क्या है, खून के अंदर होते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसके खून का कलर होता है लाल। लेकिन अगर रेड ब्लड सेल को निकाल दें तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा सफेद मादा, और वो जो पीछे सफेद मादा बची है उसी को क्या बोला जाता है, लिम्फ। तो याद रखना कि लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा नालियों का निजाम जिसके अंदर से कलरलेस फ्लूइड, जिसको लिम्फ बोला जाता है, उसका बहाव होता है, उसका सप्लाई होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में कौन गुजरता है, लिम्फ। दूसरा, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर दूसरा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं लिम्फ नोड, और तीसरा पार्ट होता है लिम्फ नालियां, या उसको बोला जाता है लिम्फेटिक वेसल्स। तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है लिम्फ, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स। हम आगे चल के जब इंसानों की बात करेंगे तो इंसानों के अंदर इसको और डिटेल में हम और ज्यादा वाज़ेह तौर पे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मेंढक होती है उसके अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म होते हैं, दौरान खून होती है, दो तरह के क्या बोलेंगे उसको, दौरानी निजाम होते हैं। एक होता है खून का दौरानी निजाम और एक होता है लिम्फ का दौरानी निजाम। फिर लिम्फ में क्या नहीं होता है, तो लिम्फ में सुर्ख खलिया, जिसको हम क्या कहते हैं, आरबीसी,
ایک تو یہ نہیں ہوتے، اور اسی طرح سے کچھ پروٹینز ہیں وہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہوتے ہیں. تو خون کے اندر نہ تو آر بی سی ہوتے اور نہ پروٹینز ہوتے. اس کی وجہ سے جو لیمف کے اندر نہ تو آر بی سی ہوتے اور نہ پروٹین ہوتے ہیں. اس لیے وہ جو لیمف ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ بغیر کلر کا ہوتا ہے، وداؤٹ کلر ہوتا ہے، کلر لیس ہوتا ہے نہ خون کے ساتھ. اب اگر ہم مینڈک کے خون کی بات کرتے ہیں تو مینڈک کے خون میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تو پہلی یاد رکھنا ہے کہ ان کے خون کے اجزاء میں پہلا ہوتا ہے پلازما، دوسرا ہوتا ہے سفید خلیہ، تیسرا ہوتا ہے سرخ خلیات، اور چوتھا ہوتا ہے پلیٹلیٹس. ٹھیک ہے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں پلازما، تو یہ اوپر والا حصہ آپ کو پلازما دکھ رہا ہے، اور پلازما کی اگر خاص بات دیکھیں گے آپ تو یہاں پر کون سا کلر بتایا گیا اس کا؟ پیلا. دوسرا سفید خلیات اور پلیٹلیٹس یہاں پر موجود ہوتے ہیں. نہ سرخ خلیات کی یہاں پر بہت اہم خصوصیات ہیں. ان میں سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یہ جو سرخ خلیات ہوتے ہیں مینڈک کے پاس، وہ نیوکلیس وہاں پر موجود ہوتا ہے. اگر انسانوں کی بات کرتے ہیں تو انسانوں کے جو آر بی سی ہوتے ہیں، جو ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں، جو خون کے خلیات ہوتے ہیں، وہ ای نیوکلیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی بغیر نیوکلیس کے ہوتے ہیں. لیکن ان کے پاس جو آر بی سی ہوتا ہے وہ نیوکلیس والا ہوتا ہے، اس کے اندر مرکزہ ہوتا ہے. دوسرا ہیموگلوبن پایا جاتا ہے جو آکسیجن کی کیا کرتا ہے؟ ترسیل کرتا ہے، یعنی آکسیجن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے. اب نیڈ فوکس بات کیا یاد رکھنا ہے کہ انسانوں کے برعکس انسانوں کا جو خون کے خلیات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں بائی کانکیو. آپ نے بالش شہی یا مندو وڑا اگر دیکھا ہوگا تو اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن مینڈک کی اگر بات کریں تو مینڈک کے جو سرخ خلیات ہے، جو آر بی سی ہے، وہ بیزلی شکل کے ہوتے ہیں، یا وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اوول. اور دوسرا ان کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے. کیا موجود ہوتا ہے؟ نیوکلیس. تو بنیادی طور پر بات یاد رکھنا ہے کہ انسانوں کے خون میں اور مینڈک کے خون میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ انسانوں کا جو خون ہوتا ہے وہ بائی کانکیو والا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے بائی کانکیو. لیکن ان کا جو خون کے خلیہ ہوتے ہیں یا آر بی سی ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ بیزلی ہوتے ہیں، گول ہوتے ہیں. دوسرا انسانوں کا جو خون کے خلیات ہوتے ہیں، آر بی سی ہوتے ہیں، ان کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا. جبکہ مینڈک کا جو خون کے خلیہ ہوتے ہیں اس کے اندر کیا خون کے خلیات ہوتے ہیں اس کے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ نیوکلیس موجود ہوتا ہے. یاد رہے گا ابو اگر بھائی نہ. اب ایک بہت اہم چیز یاد رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے انٹیگریشن، باہمی ربط. کس بات کا انٹیگریشن؟ کس کا باہمی ربط؟ کہ اگر ہم ہاضمے کی بات کرتے ہیں یعنی ہمارے نظام کی بات کرتے ہیں، یا جو ہضم شدہ غذا ہے، اور دوسرا ہے تنفس یعنی آکسیجن. تو ہضم شدہ غذا اور آکسیجن، ان دونوں کو جسم کے اندر کیا کرنا ہوتا ہے؟ سپلائی کرنا ہوتا ہے. تو ان دونوں کو سپلائی کرنے کا کام کون کرے گا؟ یہ کرے گا ہمارا دوران خون. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہضم شدہ غذائیت اور عمل تنفس یعنی آکسیجن کا سپلائی، یہ دونوں کام کون کروائے گا؟ دوران خون. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوران خون کی مدد سے ہمارے جسم فراق کے جو مینڈک ہے اس کے جسم کو کون سی والی ضرورت پوری ہوگی؟ توانائی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کے اندر جو الگ الگ نظام ہے وہ مل کر کام کرتے ہیں، اور جب وہ مل کر کام کرتے ہیں تب اس کو بولا جاتا ہے باہمی ربط، یا اس کو بولا جاتا ہے انٹیگریشن، یا اس کو بولا جاتا ہے کوآرڈینیشن. ہمارے جسم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ایک سسٹم جو ہمارے جسم میں بنتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن. کہ سارے نا مان لو کہ بھائی آپ 4 بھائی ہیں یا 3 بھائی ہیں، تو آپ کو جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریشن کرتے ہیں، کوآرڈینیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بھائی تو کیا کرنے والا ہے، بھائی تو کیا کرنے والا ہے. تب آپ کا کوئی بھی کام کیا ہوتا ہے؟ آسانی سے انجام دیا جاتا ہے، تکمیل کو پہنچتا ہے، مکمل ہوتا ہے. ویسے ہی ہمارے جسم کے اندر جو بھی کام ہو رہا ہے وہ بھی، اور فراک کی بات کر رہے ہیں، مینڈک کی بات کر رہے ہیں، تو مینڈک کے جسم میں بھی جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان سارے کاموں کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ کوآرڈینیشن، باہمی ربط ہوتا ہے، انٹیگریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آخری یہ ہماری سلائیڈ ہے اس چیپٹر کی، اس کو یاد رکھنا ہے کہ پہلی بات یاد رکھنا ہے کہ نظام کی اگر بات کرتے ہیں تو جو بھی مینڈک ہوتا ہے وہ گوشت خور ہوتا ہے، اس کی چھوٹی آنت ہوتی ہے، کولیکا ہوتا ہے. دوسرا نظام تنفس کی بات کریں تو خشکی پر پھیپھڑوں کا پانی اور ہائبرنیشن میں ایسٹیویشن میں جلد کا استعمال کرتا ہے. نظام دوران خون کی بات کریں
تو دل 3 खानों वाला होता है, न्यूक्लियस आरबीसी में मौजूद होते हैं और रीनल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पे मौजूद होता है. ठीक है ना. अब इसके बाद और कौन, इसके बाद वाला निजाम, उसके बाद वाला निजाम कौन सा है? हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा हमने सिस्टम में बात की है सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा हमने बात की है लिम्फेटिक सिस्टम, चौथा हमने बात की है राब्ते का निजाम या इंटीग्रेशन. अब हम बात कर रहे हैं निजाम इखराज. निजाम इखराज या इस्तिखराज की अगर बात करते हैं तो इनके जिस्म में, खास करके मेंढक के जिस्म में जो निजाम इखराज होता है वो बेहतरीन तरक्की याफ्ता निजाम होता है. हम आगे चल के जब कुछ बेसिक चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें हम ह्यूमन इस्तिखराजी निजाम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो लोअर एनिमल है, जो छोटे जानदार हैं, उनके अंदर जो निजाम इखराज होता है, जैसा कॉकरोच की अगर बात करते हैं तो कॉकरोच के अंदर जो निजाम इखराज होता है वो कौन करता है? वो मार्फिजियन ट्यूब्यूल करती है, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. लेकिन अगर मेंढक की बात करते हैं तो मेंढक तरक्की याफ्ता उसके अंदर क्या होता है, यानी वेल डेवलप फॉर्म ऑफ एक्सक्लूडरी सिस्टम इसके पास प्रेजेंट होता है. दूसरा मेटाबॉलिक जो फुजला होता है, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो जिस्म से मौसर तौर पर क्या कर दिया जाता है? खारिज कर दिया जाता है. हम आगे चल के पढ़ेंगे कि अलग अलग जानदारों के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं. किसी के पास जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो यूरिया होता है, किसी के पास यूरिक एसिड होता है, किसी के पास अमोनिया होता है. तो स्पेशली इनके जिस्म से जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है वो यूरिया निकलता है. इसका मतलब उसको पूरी तरह से जिस्म से बहुत आसानी से क्या किया जाता है? खारिज किया जाता है. कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, हम आगे बात करेंगे. अब अगर थोड़ा सा आप अगर डायग्राम को देखेंगे तो इस डायग्राम के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसको बताया है कि इनके जिस्म के अंदर जो इस्तिखराजी निजाम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो सबसे पहला पार्ट याद रखना है, जैसे गुर्दे. कौन होती है? गुर्दे. इनके जिस्म के अंदर जो होते हैं, पहला जो इस्तिखराजी निजाम का पार्ट होता है वो होता है गुर्दा. दूसरा होता है, उसको बोला जाता है, यहाँ पर उसको नाम नहीं दिया उन्होंने, उसको बोला जाता है यूरेटर. क्या बोला जाता है इसको? यूरेटर, URETER. अगर वो लिखा हुआ सही तरीके से नहीं दिख रहा है तो मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, लिख लीजिए. पहला होता है किडनी, दूसरा होता है यूरेटर, तीसरा होता है मसाना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और तीसरा जो चौथा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोलेक्टा. थोड़ी देर पहले अभी हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, निजाम पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने कोलेक्टा की बात की. तो कोलेक्टा होता है. तो इस तरह से याद रखना है कि एक पार्ट होता है गुर्दे, दूसरे पार्ट होता है मसाना, तीसरा पार्ट होता है कोलेक्टा. एशियन बेटे कौन सी वाली डायग्राम नहीं दिख रही है? अब अगर कौन सी डायग्राम नहीं दिख रही बेटा? अभी दिख रही है? अभी भी नहीं दिख रही है. अभी क्या स्क्रीन कैसी दिख रही है तुमको? स्क्रीन में फोटो आ रही नहीं आ रही आपको? मोबाइल की स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? आपकी स्क्रीन पर फुल ब्लैक क्यों दिख रहा है? इंटरनेट तो खत्म नहीं हुआ आपका? इंटरनेट तो खत्म नहीं हो गया? देखो एक बार, क्योंकि अर्शियन को तो डायग्राम वगैरह सब क्लियरली दिखाई दे रही है, आपको क्यों नहीं दिख रही? अच्छा, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो बात बोल रहा हूँ वो उसको लिखो कि इनका जो इस्तिखराजी निज़ाम है, उस इस्तिखराजी निज़ाम में कौन कौन सी चीज़ है? एक है गुर्दा, देखो एक है गुर्दा,
दूसरा है यूरेटर, तीसरा है मसाना जिसको बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा है जिसको बोला जाता है कोलेक्का। जिस तरह से अभी हमने ना सर्कुलेटरी सिस्टम के दौरान निज़ाम की बात करें कि वहाँ दिल होता है, खून की नालियाँ होती है और खून होता है, वैसे ही इनके इस्तिखराजी निज़ाम की अगर बात करते हैं तो इस्तिखराजी निज़ाम में क्या होती है, गुर्दे होते हैं, यूरेटर होती है, मसाना होती है और कोलेक्का होती है। ठीक, ठीक है, लिख लिया अबू बकर बेटा? दिल, यूरेटर, मसाना यानी यूरिनरी ब्लैडर और कोलेक्का, तो ये उनका इस्तिखराजी निज़ाम के पार्ट्स हैं। ठीक है ना, अब निज़ाम इखराज के अहम हिस्से जो मैंने पहले दिखाया, एक है गुर्दा, एक है यूरेटर, एक है मसाना और एक है कोलेक्का, जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक ना, उसके बाद है गुर्दे की साख्त। अगर गुर्दे की साख्त अगर आप देखेंगे तो गुर्दे की साख्त में जो सबसे छोटी और बड़ी चीज होती है, कौन सी होती है, उसको बोला जाता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। लिख लीजिए इसको, गुर्दे के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसको बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिख रहा है, उसको बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। तो उनके गुर्दे में जो होता है वो कौन होते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसी को हम जब ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन सिस्टम में हम इसको बोलेंगे नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे इसको, नेफ्रॉन। तो या तो उसको बोला जाता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है इसको, नेफ्रॉन। फिर इसको बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि इनको बोला जाता है उर्दू में लोबिया। तो लोबिया यानी फोल्डेड होते हैं, यानी घुमाव की शक्ल होती है। तो लोबिया की शक्ल के गहरे सुर्ख आंसू होते हैं, लाल कलर के होते हैं। फिर इनकी जो किडनी होती है, किडनी कहाँ चिपकी हुई होती है, इनकी जो किडनी होती है वो रीढ़ की हड्डी को चिपकी होती है। जैसा हमारी जो किडनी है वो किडनी कहाँ पर रखी हुई है, वो किडनी एब्डोमेन के अंदर, हमारे पेट में। लेकिन इनके पास जो किडनी होती है वो कहाँ पर होती है, रीढ़ की हड्डी को चिपक कर होती है। तीसरा, इनके जिस्म में होते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसका मतलब इनकी जो किडनी है वो किडनी किससे बनी हुई है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ना पेशाब का जब बहाव की बात करते हैं तो पेशाब का बहाव कौन से डायरेक्शन में होता है, तो सबसे पहले गुर्दे के अंदर पेशाब बनेगा, फिर वो जाएगा यूरेटर में और यूरेटर से वो कहा जाएगा कोलेक्का। यानी अगर इसको थोड़ा इस तरह से समझते हैं तो पेशाब जो बनेगा यहाँ पर बनेगा, फिर उसको यूरेटर के थ्रू यहाँ पर भेजा जाएगा, मसाना उसको स्टोर करेगा और फिर मसाने से वो क्या होगा, कोलेक्का के थ्रू, हमारे कोलेक्का के थ्रू मेंढक के जिस्म से क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो इम्तिहान में ये बात भी पूछी जाती है कि जो पेशाब का इखराज होता है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो पहला याद रखना, किडनी में पेशाब बनेगा, यूरेटर में उसको सप्लाई करेंगे, उसका स्टोरेज, उसको कहाँ होल्ड करके रखेंगे, कहाँ जमा करके रखेंगे, मसाला में, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर कोलेक्का की तरह उसको जिस्म से क्या कर दिया जाएगा, जिस्म से खारिज। ना अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसाना जो होता है उस मसाना की साख्त और उसके आकार। मसाना जो होती है वो पतली दीवारों वाली एक थैली होती है। जैसे हम क्या करते हैं हमारे जिस्म के अंदर ना, मान लो 4 घंटे का आपका क्लास हो गया या 8 घंटे की क्लास हो गई और आप कंटिन्यूस पानी पी रहे हैं, तो आपके जिस्म में पानी जितना पिएंगे उतना ज़्यादा पेशाब भी बनेगा, और पेशाब जाके कहाँ स्टोर होने वाला है, आपके जिस्म के अंदर, थैली के अंदर। वो थैली कौन है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसको आप क्या करें, मसाना। अभी जो मसाना, इसकी खास बात ये है कि इसकी जो दीवार है वो है फ्लैक्सिबल। क्यों, क्योंकि वो पतली है, तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, पेशाब जमा होता चला जाएगा। तो इस तरह से वो जो मसाना है उसकी दीवार क्या होती जाएगी, फैलती चलेगी। ठीक है, तो याद रखना है कि मसाने की जो दीवार होती है वो पतली होती है। दूसरा कि आर्जी तौर पर यानी टेम्पोररी, कुछ देर के लिए वो क्या करती है, पेशाब को क्या करके रखती है, जखीरा करके रखती है। फिर क्या होगा, अब आखिर में जब पूरा पेशाब स्टोर हो जाएगा तो बराह रास्त कोलेक्का की मदद से वो क्या हो जाएगा, जिस्म से बाहर। तो कोलेक्का जो है ये क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर से डायरेक्टली बाहर खारिज मिलता है, जिसकी मदद से पेशाब क्या होगा,
कोलेक्टा की मदद से बाहर आ जाएगा। तो बेसिक याद रखना है कि मसाना जो होता है उस मसाने की दीवार जो होती है पतली होती है। हम जब ह्यूमन सिस्टम में बात करेंगे तो वहाँ पर हम इसको और स्पेशल कुछ बातें वहाँ पर पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि एक जगह मेरा इंटरव्यू था और उस इंटरव्यू में सबसे मुश्किल जो क्वेश्चन आया था मेरे को वो यहाँ से आ गया था, क्योंकि उसमें मतलब उसका जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट उन्होंने बहुत डेप्थ में लेकर गए और वो जो कंसेप्ट है वो जब हम ह्यूमन सिस्टम पढ़ेंगे मैं वहाँ पर बताऊंगा। इसलिए मेरे को हमेशा मसाना याद रहता, इसलिए याद रहता है क्योंकि उसकी वजह से मेरे जो एक मार्क थे वो जाने वाले थे। तो याद रखना है कि जो मसाना होता है उसकी जो दीवार होती है वो पतली होती है, पतली होने की वजह से वो सुखड़ सकती है, फैल सकती है। याद रहेगा। नतीजे में ये होगा कि पेशाब जमा भी होगा और खारिज भी होगा। यानी आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि पेशाब जमा करना है तो धीरे धीरे दीवार फैलती जाएगी, और जब पेशाब खारिज करना होगा तो वो पेशाब के ऊपर क्या करेगी, प्रेशर डेवलप करेगी ना। अब अखराज की किस्म, इनके जिस्म से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है वो किस शक्ल में निकलता है, वो निकलता है यूरिया। कौन सी शक्ल में निकलता है, यूरिया। इसलिए मेंढक के खराज की साइंसी दर्जाबंदी जब की जाती है तो एनिमल्स को यानी जानदारों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। एक होता है जिसको बोलते हैं अमोनोटेरिक, एक होता है यूरियोटेरिक, एक होता है यूरिकोटेरिक। तो मेंढक जो होते हैं मेंढक को बोला जाता है यूरियोटेरिक। क्या बोला जाता है मेंढक को, यूरियोटेरिक। यानी ऐसे जानदार जो अपना वेस्ट मटेरियल, जो अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल की शक्ल में खारिज करते हैं यूरिया की शक्ल में। हम इंसान भी, इंसानों को भी बोला जाता है यूरियोटेरिक, क्योंकि हमारे जिस्म से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो यूरिया के फॉर्म में निकलता है, पेशाब की शक्ल में निकलता है। ठीक ना। अब गुर्दे के जो काम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो गुर्दों का जो सबसे पहला काम होता है वो खून का छानना होता है, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। दूसरा काम क्या होता है, जो भी नाइट्रोजन फुजला होता है उसको खून से निकालना होता है। और तीसरा होता है कि जिस्मानी तवाजुन को बरकरार रखना। जिस्मानी तवाजुन को बरकरार रखने का मतलब क्या है कि जिस्म के अंदर जो पानी की मिकदार है और जिस्म के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो आयंस है, उसकी जो मिकदार है उसको बराबर रखना। ये काम किसका है, किडनी का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आपके जिस्म में आयंस कम हो गए तो क्या होता है ना, आप लोग आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बोला कि यार मैं बहुत सुस्ती काहली फील कर रहा हूँ। तो आमतौर पर गर्मी के दिनों में ऐसा होता है, तो डॉक्टर आपको क्या देता है, डॉक्टर आपको देता है ORS, या डॉक्टर आपको क्या देता है, एनोजोल। ये ORS और एनोजोल में क्या होता है, इसमें होता है आयंस, सॉल्ट, मेटाबोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हमारे जिस्म में कम हो गया तो इसका मतलब हमारे खून के अंदर जो करंट है, जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक फ्लो है, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब। और अगर वो फ्लो हो गया तो हमारा जो ना, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है और वो बल्ब बार बार खुल चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है। अब अगर आपने किसी को पूछा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बोलेगा कि यार इसकी वायरिंग खराब है, यानी करंट प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो रहा है। करंट सप्लाई नहीं होने की वजह से ना तो वो पूरी तरह से चालू हो पा रहा है और ना पूरी तरह से बंद। वैसे ही हमारा जिस्म का हाल हो जाता है। तो हम जब हमारे जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं या पानी की मिकदार कम हो जाती है तो हम सुस्त हो जाते हैं, काहिल हो जाते हैं, सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है। तो हमारे जिस्म के अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स इसकी मिकदार को मेंटेन करना क्यों जरूरी है। अगर वो हमारे जिस्म में मेंटेन रहेगा तो हमारा जिस्म बहुत अच्छे से क्या करेगा, काम करेगा, कुव्वत के साथ काम करेगा। इसका मतलब मेंढक के जिस्म में भी अगर कुव्वत के साथ सारे काम अच्छे से अंजाम देना है तो उसके जिस्म में भी पानी की मिकदार को और इलेक्ट्रोलाइट्स की मिकदार को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, बरकरार रखना पड़ेगा। और ये मेंटेन करना, बरकरार रखने का काम कौन करता है, किडनी करता है ना। जिस्मानी हम आहंगी या असबी निजाम ना, इनके जिस्म के रास्ते की बात करते हैं या रद्द अमल के मुकम्मल कंट्रोल की बात करते हैं तो इनके पास दो तरह के निजाम होते हैं जिसके जरिए वो क्या करते हैं, अपने जिस्म के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं उनको कंट्रोल करते हैं। पहला होता है, उसको बोला जाता है आसाबी निजाम, उसको बोलते हैं न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है इंडोक्राइन निजाम, जिसको बोला जाता है इंडोक्राइन सिस्टम। तो दो तरह के निजाम होते हैं जिसकी मदद से जिस्म के अंदर होने वाले सारे कामों की हम आहंगी को और सारे कामों को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। एक होता है उसको बोलते हैं आसाबी निजाम यानी नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है इंडोक्राइन निजाम जिसको बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ पर जो आसाबी निजाम है वो किस तरह से बताया गया है। तो ये है उसका दिमाग
और ये है उसका स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से ये सब कौन निकल रही है, न्यूरॉन्स, असबी खलिए निकल रहे हैं जो पूरे जिस्म के अंदर क्या है, फैले हुए हैं ना। आसामी निज़ाम के अंदर क्या क्या होता है, ये आसामी निज़ाम के कितने टाइप है, तो मिनट की बात करते हैं, फिर उसके अंदर जो आसामी निज़ाम है उसमें 3 टाइप होते हैं। एक होता है उसको बोलते हैं मरकजी आसामी निज़ाम, दूसरा होता है मोहिती आसामी निज़ाम, तीसरा होता है खुद मुख्तारी आसामी निज़ाम। मरकजी आसामी निज़ाम में कौन होता है, एक होता है दिमाग और दूसरा होता है हराम मगज जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। मोहिती आसामी निज़ाम में क्या होता है, एक होता है हिस्सी आसाम यानी सेंसरी सिस्टम, और दूसरे होते हैं हल्की आसाम जिसको बोला जाता है मोटर नर्वस सिस्टम। और खुद मुख्तारी की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमको उर्दू में यूज करना होता है, वो इंग्लिश का ट्रांसलेटेड वर्जन होता है, तो सिंपैथी का मतलब होता है हमदर्द, इसलिए यहाँ पर जो ट्रांसलेशन हो गया वो हमदर्द हो गया। लेकिन इसको याद रखना कि यहाँ पर हम सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक जो बोलते हैं, तो सिंपैथेटिक का मतलब होता है ऐसा नज्म जिसकी वजह से काम बढ़े, और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है जिसकी वजह से काम रुक जाए। तो ऑटोमेटिक अगर काम करना है तो ऑटोमेटिकली काम को बढ़ाना है, ऑटोमेटिकली काम को घटाना है। इसके लिए जो काम करने वाला निज़ाम होता है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक। क्या बोलते हैं उसको, ऑटोनॉमिक। और उसी ऑटोनॉमिक से जो लफ्ज आया है वो क्या है, खुद मुख्तार। ऑटोमेटिक मतलब जिसको इख्तियार है, वो अपने काम खुद करता है। तो वैसा फ्रॉग के बॉडी में एक नज्म होता है आसामी निज़ाम के अंदर, एक होता है मरकजी आसामी निज़ाम, दूसरा होता है मुहिती आसामी निज़ाम, तीसरा होता है खुद मुख्तारी आसामी निज़ाम। और खुद मुख्तारी आसामी निज़ाम जिसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। अर्शान का सवाल है कि यूरेटर और मसाना, नहीं, यूरेटर और मसाना दोनों अलग अलग है। यूरेटर नली है और मसाना थैली है, तो किडनी में जो भी पेशाब बनेगा वो नली के थ्रू कहाँ पर आएगा, मसाना में आएगा। ठीक ना। अब मरकजी आज़ामी निज़ाम को मैंने बताया कि मरकजी आज़ामी निज़ाम में एक तो होता है दिमाग और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। फिर दिमाग की अगर बात करते हैं तो दिमाग में 3 हिस्से होते हैं, एक होता है अगला दिमाग, दूसरा होता है दरमियानी दिमाग, तीसरा होता है पिछला दिमाग। फिर अगले दिमाग की अगर बात करते हैं तो अगले दिमाग में क्या होता है, अगले दिमाग में एक पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और दूसरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं डायनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं उसको, डायनसेफेलॉन। तो एक होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरा हिस्सा होता है इसको बोला जाता है डायनसेफेलॉन। फिर दरमियानी दिमाग की बात करते हैं तो दरमियानी दिमाग में एक हिस्सा होता है इसको बोला जाता है ऑप्टिक लोब। क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिक लोब। ये ऑप्टिक लोब का जो काम होता है वो क्या होता है, वो होता है बसारत या वो होता है विजन, यानी आंखों से रिलेटेड इसका काम है। इसलिए ना हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, जो चश्मे की दुकानें होती हैं ना, तो आपने देखा होगा वहाँ पर लिखा हुआ होता है ऑप्टिक्स। तो ये जो ऑप्टिक्स का मतलब होता है ये विजन यानी देखने की चीज की बात हो रही है, बसारत की बात हो रही है। इसका मतलब दरमियानी जो दिमागी हिस्सा होता है उसके अंदर एक लोब होती है जो आंखों से जुड़ी हुई है, आंखों से कनेक्टेड है। तो आंख से जो भी चीज मेंढक को दिखाई देती है तो उसका जो भी मैसेज है वो कहाँ जाना है, दिमाग तक। तो मैसेज को दिमाग में कहाँ लेकर जाना रहेगा, दिमाग के दरमियानी हिस्से में। क्यों, क्योंकि दरमियानी हिस्से में कौन रहता है, ऑप्टिक लोब। तीसरा पिछला दिमाग। पिछले दिमाग में इनके पास 2 अहम पार्ट होते हैं, एक को बोला जाता है सेरिबेलम और दूसरे को बोला जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या बोला जाता है, पार्ट को सेरिबेलम और दूसरे को बोला जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ना इसी तरह से इनकी जिसमें दूसरा जो मरकजी अज़मी निज़ाम है वो कौन है, हराम मगज, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कहाँ से निकलती है, तो स्पाइनल कॉर्ड दिमाग की बुनियाद से शुरू होती है। दिमाग की बुनियाद का मतलब क्या है, दिमाग की बुनियाद में आखिरी जो हिस्सा है वो कौन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसलिए जब इसको डिफाइन किया जाता है हराम मगज को या स्पाइनल कॉर्ड को, तो बोला जाता है कि जो दिमाग का आखिरी हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगेटा है, उससे एक धागे की तरह, एक वायर की तरह एक साफ्ट निकलती है और उस साफ्ट का नाम रखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसकी हिफाजत कौन करता है या इसकी लोकेशन कहाँ पर, ये कहाँ रहती है,
تو रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये जो हराम मगज है या स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? उसके अंदर होती है, और वर्टिब्रल कॉलम उसकी क्या कर रहा होता है? हिफाजत। फिर क्रेनियल आसाब। क्रेनियल आसाब का मतलब क्या होता है? ऐसे न्यूरॉन जो बराह रास्त दिमाग से निकलते हैं, ये जो है ये इसका दिमाग है, और दिमाग से निकलने वाली ये सारी की सारी क्या है? आसाब से न्यूरॉन है, और इनको बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स। क्या बोला जाता है इनको? क्रेनियल नर्व्स। अब अहम बात याद रखना है जो नीट के लिए बहुत अहम है, वो क्या है? इंसानी दिमाग में टोटल 12 जोड़े होते हैं, किसके? क्रेनियल नर्व्स के। लेकिन मेंढक की बात करते हैं तो मेंढक के अंदर सिर्फ कितने जोड़े होते हैं? 10। इसका मतलब मेंढक के अंदर 2 जोड़े कम होते हैं। वो कौन से होते हैं वो आप मेरे को बाद में मालूम करके बताइए, इंशाल्लाह मैं उसको कल बताऊंगा, बट आपने मेरे को आज बताना है। मुझे व्हाट्सएप पे बताइए कि कौन से 2 ऐसे नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स है, जो इंसानों में है लेकिन मेंढक के जिस्म में नहीं है। नाउ इंडोक्राइन हदूद, अगर इनके जिस्म की बात करते हैं तो इंडोक्राइन हदूद होते हैं। इंडोक्राइन हदूद का मतलब क्या होता है? ग्लैंड्स का मतलब ये होता है कि ऐसा अज़ू जो क्या खारिज करने वाला है? जो खारिज करने वाला है हार्मोन, यानी क्या खारिज करने वाला है? केमिकल। अब सवाल ये आता है कि इनके पास ये जो हार्मोन है या ये जो केमिकल खारिज करने वाले हदूद है वो कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला याद रखना है, उसके अंदर याद रखना है सबसे पहला पिट्यूटरी। कौन है? पिट्यूटरी। दूसरा याद रखना है थायराइड। कौन है? थायराइड। तीसरा याद रखना है थाइमस। चौथा याद रखना है पीनियल बॉडी। पांचवा याद रखना है पेनक्रिया। छठा याद रखना है एड्रिनल, और आखिरी याद रखना है गोनैड्स। तो इनके जिस्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से सारे के सारे जिस्म के अंदर क्या फैले हुए हैं? हदूद। और ये हदूद क्या करते हैं? ये हदूद खारिज करते हैं केमिकल या कीमियाई मादा, जिसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। ऐसे ही हम ह्यूमन सिस्टम में बढ़े। अभी जो मैं इतना फास्ट चल रहा हूँ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आगे चल के रिपीट होने वाली है। जो चीजें रिपीट नहीं होने वाली थी उसको मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया, इसलिए परेशान नहीं होना, ठीक है? बस इतना है कि इनके नाम याद से लिख के रख लेना। क्या क्या? कि जो एंडोक्राइन हदूद होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैनक्रिया, एड्रिनल ग्लैंड और गोनैड्स। ये सारे हदूद मेंढक में होते हैं, और यही सारे हदूद इंसानों में होंगे। और जो आखिरी सबक है हमारा उसमें हम इन सबको पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बस अभी आपने इनके नाम याद रखना है ना। हार्मोन का बुनियादी काम क्या होता है? मैंने बोला कि जितने हदूद है ये क्या करते हैं? ये हार्मोन खारिज करते हैं, केमिकल मादा खारिज करते हैं। तो ये केमिकल मादों का असल काम क्या होता है? तो इनका एक तो काम होता है कीमियाई रब्त, जिसम के अंदर जितने भी हमारे निज़ाम है उन सब निज़ामों को एक दूसरे से जोड़ना। और वो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कीमियाई मादा कर रहा है, केमिकल कर रहा है। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि इसकी वजह से कीमियाई रक्त बनता है। जैसे हमने नर्वस सिस्टम की अगर बात किया तो हमने बोला कि वहाँ पर न्यूरॉन होते हैं, असबी खली होते हैं, असबिया होता है, न्यूरॉन होता है। तो न्यूरॉन की मदद से अलग अलग ऑर्गन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे आज हम मोबाइल फोन के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वैसे ही हमारे जिस्म के जो आज़ा है वो एक दूसरे के साथ न्यूरॉन की मदद से कनेक्ट होते हैं। और दूसरा जो होते हैं वो केमिकल की मदद से होते हैं, जिसको हम कहते हैं हार्मोन। फिर ये क्या काम करता है? ये हमारे जिस्मानी जितने भी अफ़ाल है, निज़ाम अमल निज़ाम है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, इखराज है ना, ये सारे जितने भी हमारे जिस्म के अंदर होने वाले काम है उन सबको मुनज़्ज़म रखना, यानी वो होते रहे, सही तरीके से होते रहे। और दूसरा उनके अंदर तवाज़ुन पैदा करना। ऐसा नहीं होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेगा कि आज मैं कोई काम नहीं करूँगा, दौरान खून में या दिल बोलेगा कि आज मैं खूब खून को सप्लाई करूँगा, किडनी बोलेगा कि नहीं मैं पूरा खून साफ कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा, बल्कि हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ, हर पार्ट दूसरे पार्ट के साथ, हर अज़ू दूसरे अज़ू के साथ मिलकर काम करेगा। तो उनके दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना है। वो तवाज़ुन बरकरार रखने में कौन मदद करेगा? हार्मोन्स ना। अब मेंढक जो होता है उसके जिस्म में खास बात याद रखना है, और वो होते हैं उनके हिस्सी आज़ा। कौन कौन से हिस्सी आज़ा होते हैं? छूने के लिए उनके पास जो हिस्सी आज़ा होते हैं उसको बोला जाता है हिस्सी पेपिला। जायके के लिए जो उनके आज़ा होते हैं उसको बोला जाता है टेस्ट बड्स। सूंघने के लिए जो होता है उसको बोला जाता है नेज़ल एपिथेलियम। बसारत के लिए इनके पास क्या होती है? आंखें। और समात यानी सुनने के लिए इनके पास क्या होता है? टिम्पैनम। तो इन सबको बोला जाता है हिस्सी आज़ा। अब इनके जो हिस्सी आज़ा है उन हिस्सी आज़ा में से अगर बात करते हैं हम बसारत और बात करते हैं टिम्पैनम की, तो ये वेल डेवलप होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं।
باقی کی اگر بات کریں گے تو یہ صرف سیلولر سسٹم ہوتے ہیں، خلیے ہوتے ہیں. تو امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دو باتیں بہت اہم ہیں. اب بصری اعضاء کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات جب ہم نے کیا پڑھا تھا، جب ہم نے ان کی مارفولوجی کی بات کی تھا تب میں نے بات بتایا تھا. اب اس میں دو باتیں جو ایکسٹرا یاد رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا یہ کہ ان کی جو آنکھیں ہیں، اگر آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے تو وہ ہوتی ہے بلجی آئی، یعنی ان کی آنکھوں کے اندر ابھار دیکھنے کو ملے گا. دوسرا، ان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ آنکھوں کے پیچھے نا، ہم نے بولا تھا کہ آنکھ کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں آربٹس. تیسرا، ان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، گول ہوتی ہیں. آنکھ کے حلقے یعنی آربٹ، یعنی جو کھوپڑی ہوتی ہے نا، جیسے ہماری آنکھیں، تو ہماری آنکھیں کہاں ہمارے آربٹ میں ہیں. یہ جو ہے نا کھوپڑی کی یہ جو کھوپڑی ہے ہماری، اس کھوپڑی کے اندر یہ جو ہول ہے اس کو بولا جاتا ہے آربٹس. ویسے ہی ان کے پاس بھی کرینیم ہے، اس کرینیم کے اندر ہول ہے اور وہ ہول کے اندر یہ آنکھیں رکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ آربٹ ہوتی ہے. پھر دوسری، ان کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہترین ہوتی ہیں اور ترقی یافتہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت اچھے سے بصارت کر سکتے ہیں. تیسرا، ان کی جو آنکھیں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سمپل ٹائپ. عام طور پہ کاکروچ کی اگر ہم بات کریں تو کاکروچ کی جو آنکھیں ہوتی ہے وہ کمپلیکس ٹائپ ہوتی ہے، لیکن ان کی آنکھیں کیسی ہوتی ہے؟ سمپل. پھر کان کی بات کرتے ہیں تو کان میں اگر ٹمپینم، یعنی ان کا بیرونی جو کان ہوتا ہے، یعنی جو ایکسٹرنل ایئر ہے وہ موجود نہیں ہوتا. جس طرح سے ہماری یہ ایکسٹرنل کان ہے، اب اگر بھی ادھر دیکھو، یہ جو ایکسٹرنل کان ہے یعنی پنا، یہ پنا ہمارے پاس ہے لیکن ان کے پاس یہ ایکسٹرنل کان موجود نہیں ہے. پھر ٹمپینم جو ہے وہ بیرونی طور پر جسم پر نمایاں. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے کان کا، ہم اگر بولے بیرونی کان کا مطلب بیرونی پارٹ کون ہے؟ ٹمپینم. لیکن ان کے بیرونی پارٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ بیرونی پارٹ کون ہے؟ ٹمپینم ہے. یہ دھیان میں پوچھتا ہے. پھر بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ تو بنیادی کام ہوتا ہے سماعت اور جسمانی توازن کو برقرار رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ چیپٹر یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ ہوتا ہے. میری کوشش یہ تھی کہ 9 بجے میں ختم کر دوں، لیکن 9:03 ہو گیا. اب اگر بھائی کو شاید کچھ کام وغیرہ کے لیے جانا رہتا ہے. ٹھیک، تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پورا چیپٹر آج ہمارا 2 دن میں کمپلیٹ ہو گیا، لیکن یہ چیپٹر کے لیے میں نے 2 دن لگایا. اب اس کے بعد کے جتنے چیپٹرز آئیں گے ہم انشاءاللہ ان کو 2 گھنٹے میں ختم کریں گے، ایک دن میں. تبھی جا کر ہم 40 دن کے اندر اندر ہمارا پورا سبق کمپلیٹ کریں گے. ڈن. اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ان سبق کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے. ان میں جو بھی ایم سی کیو نوٹس وغیرہ رہیں گے وہ بھی میں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ شیئر کر دوں گا. جب بھی جہاں پر کوئی ڈاؤٹ آئے میرے کو پوچھنے کا. ٹھیک، چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.